Hello everyone. An amusing thing about Microsoft Excel has been when you start to Excel, people start to spreadsheet. Good evening to all the participants. Our beloved Central Council member K. Prakash Sharma sir, our chairman of BIMEG and our speakers K. Lokesh Kakar sir and our other speakers K. Udit Bhargav and Nilansh Yadav. Unfortunately, our chief guest K. Alok Gupta sir could not be present with us today as he has to run for an emergency for COVID-19. I would also like to extend a thank you to our Center of Excellence branch, which is today's webinar organizer, along with other participating branches. So thank you. Here Nitin Agarwal ji, Chairman, Alwar branch. Here Navratan Otawal ji, Chairman, Byawar branch. Here Rakesh Gupta ji, Vice Chairman, Bharatpur branch. Here Paresh Jain ji, Chairman, Bhilwara branch. Here Rakesh Jhakar ji, Chairman, Bikaner branch. Here Rakesh Sisodia ji, Chairman, Chittorgarh branch. Here Akash Barboti ji, Chairman, Jaipur branch. Here Balveer Gehlot ji, Chairman, Jodhpur branch. Here Saket Kalani ji, Chairman, Kishangarh branch. Here Lokesh Maheshwari ji, Chairman, Kota branch. Here Ruchi Baheti ji, Chairman, Pali branch. Here Ashish Gupta ji, Chairman, Srinagar branch. And here Ashish Okwal ji, Vice Chairman, Udaipur branch. I welcome you all to today's webinar on understanding and exploring the power of Microsoft Excel in our professional world. Today around the world, every organization is using Microsoft Excel in one or the other way to ease their process. Tools and tricks of Microsoft Excel helps to simplify, accelerate, automate the simple business procedures. It can help in reduction of slow and error-prone procedures, which can be uh, error-prone procedures, which is due to the human interaction and human work in the business processes. In the business processes like payroll administration, invoice creation, preparation of financial statements and finalization, and as well as in the audit program like sample selection, ratio analysis, year-to-year basis comparison, audit documentation, asset and liabilities, and income and expenditure checking, eliminating recurring steps over the year, and many more. As someone has said, the spreadsheet is like a corporate poetry which is being constructed which if constructed elegantly can help to communicate better can help to communicate in a better way any complicated idea which to the audience will be difficult to understand. With the same, I would like to invite C. Prakash Sharma sir to begin the session with his kind words. Thank you, Shivani. Yeah. Respected Lokesh Kasar ji, young and ex-chairman of Jaipur branch. Other speaker, Udit Bhargav ji. Other speaker, Nilansh Yadav ji. Today's moderator, Shivani Maheshwari ji. My secretary of COE, Manoj Agrawal ji. And all the viewers. A very good evening to you all. Friends, we know in this type of sessions, presence is generally less. And that is why one of the worst part that after trying my time and again to bring those information for our members that which are very, very essential, but still our members are not ready to accept those challenges. That is the biggest problem in our profession. Friends, if there was one thing that the year 2020 showed us, it was the importance of being digitally versatile. And just see in small 1 year how persons who were doing practice, their total working has changed. Friends, 72% of CA practicing firms are individual practitioners according to the records of our institute. And majorly more than 90%
members are in traditional lines, that is taxation, and income tax, GST, and routine audits. Friends, on 13th of August, our Prime Minister sir declared that now onwards in income tax department, it will be a faceless assessment. And faceless assessment to what level? It will be to the level of income tax tribunal. Even in developed country like USA, the faceless assessment is in a routine. Even from scrutiny, you have to be present there physically. But in our country, till income tax tribunal, it will be faceless. In the last budget, you saw that most of the GST certification has been dropped. Tax audit limit has been increased to now 10 crores. What all those things are giving indications to us. Even in the end of March month of this year only, there was a circular by government that now for companies will have to keep trail of their accounting software, that when and what kind of changes they have made during the year when we will be doing audits. What all these things are indicating? Believe it, friends, government is already having very advancement in these all matters. And very soon, you will see that we will be not requiring filing different returns for different departments. We will be filing one return for all the matters. We'll be doing only one audit, and that audit will be only system audit, not any other audits. Financial audits will be part of system audit. It is very clear. I welcome our chairman of Jaipur branch, Akash ji, and vice chairman Kuldeep Gupta ji. So friends, the way things have changed, we don't have any option. Even last year, I have organized one session of chairman of Deloitte of audit division. And he was very clear, if we are not going to change ourselves, we will be thrown away from the practice. And in today's circumstances, if we will not update ourselves technologically, believe it, friends, we will not be able to survive. It will be very difficult. And technology is changing so fast. It is increasing, changing very fast. And we have to keep ourselves updated regularly. We don't have any option. Even in our institute, we have made a group for bringing these changes in the course of our CA students. And very soon you will see that you will see lots of changes in our CA courses, and especially digitization will be one of the important courses in our CA profession. Even if you see this year for voting for regional council and central council, Institute has taken decision that all the systems, wherever there will be a voting center, it will be connected through internet, and member will be allowed to give vote in their region anywhere. He has to only inform 14 days before. And even if he wants to give vote out of region, if he informs to the institute before 21 days, he will be allowed to give vote from that place. So day by day, things are changing. Most of the members have chosen our journal of institute, e-journal. Even on SSC portal, we are trying our best to make it 100% operational for all the matters. So our member may not require to contact any person manually for any kind of work. These are major changes. And if we have to continue or keep our profession safe, our clients safe, we don't have any option. We'll have to update ourselves. Most of the data will be sharing by our client. So we'll have to take care of those data, even third-party liability.
and clients' indemnity, liability will have to take different insurances also. So these are very important challenges for us. At the same time, just few days back, there was a statement by Mr. Krishnan. He's a IBM chief, and his statement was, the cyber security is the pressing issue of the decade. That is true, because after this COVID-19 started, online banking increased by 100 times, but at the same time, cybercrime has increased 500 times. So we'll have to take care of these matters also. I will not take much of the time, and I'm very sure that this session will be very, very important for our members. For this type of sessions, very soon we will be coming out with you with more detail, more information, because these are the most important things now for the professionals. So not making much of the time on this matter. Over to Shivani. Thank you. Thank you a lot. शिवानी आप म्यूट पे हो, म्यूट को अनम्यूट करो. Thank you so much, sir, for your kind word, and thank you for making sure that we for making us see what the future would always look for being a professional. With the same, today we have three prominent speakers to enlighten us on the topic of business process automation and the tricks and tips to use Excel as a tool in our auditing and professional world. So let's get to know a little bit about them. Firstly, I would like to speak for Nilesh Yadavji, who is a professional Microsoft Advanced Excel trainer and a Microsoft Power BI business intelligence trainer. He has done his MBA from NIT Jaipur and has been a S&P Global alumnus. Our second speaker is CA Udit Bhargavji, who is a practicing CA and has been keen interest in automation. Being a technical analyst, he has been passionate about departing his knowledge to hundreds of students in the field of stock market. And thirdly, our last speaker is CA Lokesh Kakadji. With 15 years of experience in the field of finance and taxation, he has played a major role, a key role in the well-known multinationals, where he has been responsible for global accounting, including compliance and control, financial reporting, accounting transaction work processes, financial information system. He has also worked with BCCI and HCL, and also mentored in one of the famous platforms of an academy of CA Stream, handing over the sessions to all our three speakers. Sir, you're on mute. Yes, thank you, Shivani. Yeah. Yes, respected our own Central Council member Prakash sir, and respected all hosting branches, Chairman Alwar branch CA Nitin Agarwal ji, Biawar branch Navratan Ostwal ji, Bharatpur branch Vice Chairman Rakesh Gupta ji, Bhilwara branch Chairman Paresh Jain ji, Bikaner branch Chairman Rakesh Jakhar ji, Chittorgarh branch Chairman Rakesh Sisodia ji, Jaipur branch Chairman C. Akash Bargoti ji, and with him Vice Chairman Kuldeep Gupta ji, Jodhpur branch Chairman Balveer Gehlot ji, Kishangarh branch Chairman Saket Kalani ji, Kota branch Chairman and my name brother Lokesh Maheshwari ji, Pali branch Chairman Ruchir Bhaiti ji, Sri Ganganagar branch Chairman Ashish Gupta ji, and Udaipur branch Vice Chairman Ashish Kusutwal ji. A big thank you to all that you all have given us the opportunity to present that what we have learned in the past pandemic situations. To respected all members who are there, as we see today, the topic name is business process automation, which clearly focus on the power of Excel, and especially we are here to show it how a chartered accountant can use this Excel tools in the CA professional life. These days, tools of Excel become a necessity in every aspect of business as well as for our profession too. In this session, we will learn various types of formula and how to use them in our professional work. Also, we need to link them various formulas.
Friends, I see Excel as a solution to every potential problem. But the thing is, and the point is, how to find the problem and do some research on it. For example, before 10 days back, I was sitting with my younger brother and the vice chairman of the branch, Kuldeep Gupta ji, and what he was asking me that, and we were discussing कि भैया ऐसा कोई टूल हो सकता है क्या कि हम एक्सेल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज सके किसी को भी, मींस नंबर सेव हो चाहे ना हो. फ्रेंड, मैंने उस पर रिसर्च की सीरियसली फ्रॉम लास्ट 10 डेज. आई हैव वर्कड ऑन इट और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये काम भी एक्सेल के थ्रू हो सकता है. तो टू स्टार्ट विद आई विल जस्ट शो यू अ स्मॉल डेमो. लोकेश जी 1 मिनट एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा. यहाँ सर Yes, जो sir. मेंबर्स अभी अवेलेबल है कि इंस्टीट्यूट में हम बहुत एडवांस लेवल पे 2 सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं हमारे मेंबर्स के लिए. एक ऑफिस मैनेजमेंट के लिए होगा, दूसरा ऑडिट टूल है, और दोनों के दोनों बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. उस पे फुल फ्लैश काम चल रहा है. इस सितंबर तक में वो दोनों के दोनों टूल्स हम सब मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगे. ठीक है, थैंक यू सर. सर आप है इंस्टीट्यूट में, इसीलिए हमें रहता भी है कि कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट लाएगा. तो फ्रेंड, जैसा कि मैं कह रहा था, सपोज यू हैव अ डेटा. आई विल जस्ट शेयर यू अ स्क्रीन विद यू. यस, सपोज यू हैव सम डेटा. अब आप, मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एक्सेल टूल बता रहा हूं, वेयर बाय वी हैव सम मोबाइल नंबर, वी हैव सम ईमेल आईडीज टू. वहां पे हम ये चाहते हैं कि इन मोबाइल नंबर, अगर ये सब मोबाइल से व्हाट्सएप पे है, तो इनको हम एक कस्टमाइज मैसेज ऑटोमाइज वे में भेज सके. मींस मैसेज जाते रहे और हम बेफिक्र होके अपने घर पे बैठे हैं, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं और मैसेज अपने आप चले जा रहे हैं. तो टू स्टार्ट विद, आई हैव बिल्ट अ टूल इन एक्सेल. आप सब लोगों ने कंप्यूटैक्स देखा होगा या कोई वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे होंगे. जीनियस हो गया, क्लियर टेक्स्ट हो गया. फ्रेंड्स, वो सब भी बेस अगर बात करें तो एक्सेल की शीट्स ही है. अभी इसके अंदर क्योंकि हमारे सारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन वाइस चेयरमैन अवेलेबल है, तो मैंने रेंडमली क्या किया, उनके फोन नंबर लिए हैं. आई हैव रेंडमली प्रिपेयर्ड अ मैसेज, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल भेजना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूँ या कोई मीडिया फाइल भेजना चाहता हूँ. मैंने इससे स्टार्ट किया. मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि इन मोबाइल नंबर पे ये रिस्पेक्टिव मैसेज चल जाए. ये जो मैसेज मैंने फ्रेम किए हैं, ये भी मैंने एक्सेल के फॉर्मूला से ही फ्रेम किए. मीन्स आई हैव द नेम विद मी. जब सबके नाम मेरे पास थे, तो मेरे पास सबके नाम से मैसेज बनाना कोई बड़ा काम नहीं है. इट कैन बी डिस्कस सेपरेटली, बट वी आर डिस्कसिंग एडवांस्ड स्टेज. फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप एक टूल देखेंगे तो मैंने एक लाइन दे रखी है, सेंड व्हाट्सएप. हमें क्या करना होगा, इफ वी एबल टू डेवलप दिस टूल, हमें केवल सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करना है. जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ये मेरे को वेब व्हाट्सएप पे ले जाएगा. उम्मीद करता हूँ वेब व्हाट्सएप आप सब लोग पूरा यूज टू होंगे. व्हाट इज वेब व्हाट्सएप. मैंने इस डिवाइस को अकॉर्डिंगली स्कैन किया. अब फ्रेंड्स देखिए, मैं कुछ काम नहीं करूंगा. ऑल द वर्क इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय एक्सेल, और सारी चीजें अपने आप, सबके पास अपने आप मैसेज टाइप होगा, और ये मैसेज अपने आप, चाहे मेरे मोबाइल पे हमारे सबके नंबर सेव हो या ना हो, सबके पास ये मैसेज, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, अपने आप टाइप हो रहा है, अपने आप जा रहा है. ठीक है. मैंने इंटेंशनली हमारे जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन थे, उनके मोबाइल को चेक के मेरे मोबाइल से डिलीट किए, ताकि ये शो करने के लिए कि हम लोग बिना मोबाइल नंबर सेव किए भी इस टूल को यूज कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज टू लर्न द बेसिक्स अबाउट एक्सेल. तो फ्रेंड, मैं जो हमारे साथ चेयरमैन जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, भाई मैसेज तो उनको डिलीवर हो रहे हैं ना, तो चैट बॉक्स में वो कर दे. तो इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैसेज जाते जा रहे हैं. यू कैन जस्ट सी दैट एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड. तो इस सेशन में बेसिकली जो टारगेट है, व्हाट वी विल डू, वी विल लुक अप वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज. फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास क्लाइंट से एक शीट आती होगी अबाउट द वेरियस चलान्स. क्लाइंट बोलता है मैंने सबका टीडीएस काट लिया और 4-5 चलान जमा करा दिए. अब हमको काफी मशक्कत आती है ये टोटल करने में कि
कौन से चालान में कौन से कस्टमर्स है, जनरली छोटे क्लाइंट्स जो होते हैं वो उसका डेटा खो देते हैं। तो एक्सेल इज हैविंग सच टूल ऑल्सो। एक्सेल में ऐसे टूल भी है वेयर बाय वी कैन जस्ट मैच आउट कि अगर वो चालान है तो पॉसिबल कौन सा है। मैं उदित से यहाँ पे बाद में रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि उदित इस चीज को आपको क्लियर करें। साथ में इस सेशन में हम एक्स लुकअप के साथ साथ उसके वी लुकअप तो आप सब लोगों ने सुना है, तो नीलांश जो है वो आपको एक्स लुकअप और उसके फर्दर वर्जन्स क्या है, हम उसमें फर्दर क्या चीज एड ऑन कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फर्दर जो एक आजकल सबसे ज्यादा हिट है, आई विल से पावर क्वेरी। आपने उम्मीद करता हूं कई जो काफी सारे हमारे अटेंडीज हैं उन्होंने नाम सुना होगा। तो व्हाट विल बी द पावर क्वेरी, उसका बेनिफिट कैसे एक सीए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ले सकता है। सो दैट विल बी द बेसिक थिंग। तो ये मैसेज मैंने थोड़ा सा एक वर्जन दिखाया आपको एक्सेल का। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके फॉर्मूलेज अपडेट करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू नीलांश टू शेयर सम फॉर्मूलाज, आई विल बी देयर। अगर कुछ चीजें लिंक करने का हुआ तो उस चीज को मैं अपडेट करता रहूंगा। ओवर टू यू नीलांश। Thank you so much, sir. Hello, everyone. So I am Nilansh, and uh, let me just share my screen first. So our topic for today's seminar is business process automation techniques with MS Excel. So our focus will be on the processes and techniques that we can use, that you CAs can use in your daily work, so that you can be more efficient and productive on daily basis. So there are a lot of things. Basically, you all will be using MS Excel, I am pretty sure. But main issue is we do not know the strength of the strength of Excel. What all we can do apart from just normal work. So our focus will be on that. So today's topics are, these are the topics that we are going to cover in today's seminar. So I will just start from basic one. We will move gradually to the higher versions or the difficulty level. Let's just start with the flash fill. What is flash fill? Basically, let me just go to the examples. So this is a data. This data is, ये डेटा हमारे पास किसी क्लाइंट से आया है, कहीं से भी आया है, ये डेटा है एक नॉर्मली. सो डेट है, इनवॉइस नंबर है, कोड एंड प्रोडक्ट एंड टैक्सेबल अमाउंट एंड ऑल दिस, right? So my just basic question is, if I have to segregate these two, like code and product, what can be done? अब तक आप लोग मतलब इसको नॉर्मली कैसे करते हैं? सबका आंसर ज्यादातर यही होगा कि हम सीधा इसको टेक्स्ट टू कॉलम कर देंगे. लेट मी जस्ट शो यू टेक्स्ट टू कॉलम से क्या होता है. क्योंकि अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी में 3 हाइफन है, किसी में सिंगल है, किसी में डबल है. सो अगर मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम करता हूं नॉर्मली, तो देखो ये ऐसा डेटा आएगा कुछ अलग अलग. इधर कोड तो अपने सही हो जाएंगे, बट प्रोडक्ट हमारा अलग अलग कॉलम में शिफ्ट होगा. लेट मी जस्ट शो यू फिनिश. सो कुछ इस टाइप से डेटा होगा. तो ये एक प्रॉपर टेक्निक नहीं है, आप इसको लेफ्ट राइट लगा के भी बहुत डिफिकल्टी से होगा. सो फ्लैश फिल यहाँ पे क्या काम करता है? फ्लैश फिल बेसिकली, Excel recognizes patterns and auto fill the cells. It recognizes the pattern in which the data is being filled. So basically it involves artificial intelligence, no macro and no VBA is involved in this. So how am I going to do this is like this. I will first write the first part in this cell. I will add 2 columns because I have to segregate code and product.
So I will here write A001 and here I will write SBM products, right? So now I just have to simply go to data and this icon, this is flash fill. The shortcut key is Control E. So if I press Control E here, see what happened. It automatically recognized the pattern. Okay, same goes here. If I come here and press Control E, it automatically fills the other part of the this cell, that is SBM product or FLS product. So सर मैं इसमें निरांश जस्ट मोमेंट सर, जैसा कि आप देखेंगे ये हमारे कहाँ काम आ सकता है, जब हम बैंक ऑडिट में जाते हैं काफी बार बैंक हमें एक फाइल दे देता है सिंपली जो उनका फिनाकल से जनरेटेड होता है और बोलता है यही फाइल है। अब हम ही उसको वहाँ एक्सेल में कन्वर्ट करके देख दिखा रहे होते हैं, कभी कभार काफी फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम्स आती है कि इस टाइप की चीज जनरली आप देखेंगे काफी बैंक्स में देखने को मिली है। तो ये जो फ्लैश फिल एक छोटी सी चीज है, तो आपका क्लाइंट का डेटा अगर किसी भी कॉलम का कुछ अनमूवन है, कुछ अजीब है, तो आप फ्लैश फिल टेक्निक से उसकी एआई को यूज कर सकते हैं। करेक्ट निलंज? yeah, definitely sir, exactly. So is apart from filling the cells automatically, the main thing is this happens in no time. I mean, I have if normally if there was one hyphen also, I have to go to data and then text to column and then I have to do some processes, and in this way we can just do it in no time. So this is the beauty of the flash fill. So let's just take another example. This is a data, this I have created on my own. So basically whatever the data is, it just recognizes the pattern. Like if I enter my name Nilansh here and I press Control E, so it takes all the first name based on the pattern, right? What if I written my complete name, Control E, it would have taken the full name of other members also. So I'm sure now it has been clear to you, like it recognizes the patterns, how the data is being filled, and based on the data that we have entered manually, it recognizes the pattern. So if I enter here Excel and Power BI, so because only three there after comma only three entries were there, so it recognized only three entries as here are here, right? There is another example, just last one. Like there are certain entries that are being segregated by comma, like South, Luke, Whole Foods, SBM products, and irrespective of like writing South first and Luke first and then Foods, I can write whichever part I want. I can write it directly. Like I want the Whole Foods part, so I will just write Whole Foods and Control E. See, the third part was Whole Food here, and in this column the third part was MrExcel.com, so it recognizes that only. So, and look how much data is there. So this is the beauty of flash fill. I hope this is clear, right? So I'm sure that you will be using flash fill from now on, apart from using text to column. Text to column is also important, but where you can save your time, you just use flash fill. That's it. So our next topic is XLOOKUP, fuzzy lookup, and solver. So participants, in this industry, in accounting industry or reporting industry, the most used feature of Excel is VLOOKUP, right? VLOOKUP is amazing formula. Like it is really useful. But what happened in an update, last update of Microsoft Office 365, they have introduced XLOOKUP. Like it is the master of VLOOKUP and HLOOKUP. VLOOKUP helps to look you vertically and HLOOKUP helps to look you horizontally. So XLOOKUP, you can look up in any direction. It has removed the possibility of like, so let me just show you. First, let me tell you the
what were the challenges that we used to face in VLOOKUP? If I have to, VLOOKUP only searches from left to right. Like I have to put that lookup value on the extreme left, and it only searches from right side of that value. I'm pretty sure you are able to relate to it. Like if I have, let me just show you the example. It's equal to VLOOKUP. If I have to look up the value of SBM products and my codes are here, okay. So what I will be using VLOOKUP. Lookup value is SBM products, comma, and table array. Table is in my code sheet, and this is the table. Now here is the challenge, because VLOOKUP only searches from left to right, and my product codes are on the left hand side of the products. So it is not possible to search the product code via VLOOKUP. So here we will be using XLOOKUP. How we can use it? So is equal to, I'm writing XLOOKUP. So it is also the first argument is the lookup value. Lookup value is this SBM product, and the next one is lookup array. See, the difference is there. It was saying the lookup table. Table array. The second argument was table array, but in XLOOKUP it is only array. We can select any array in this. Okay. So XLOOKUP value ये है SBM products, comma, हमारा lookup array ये हो जाएगा, and the return array, irrespective of the sides of the column, we can just select this is my lookup array. So this is the beauty of XLOOKUP, and it also includes if error formula in this only. Like if the value is not found, we can simply write not found, right? So let's just freeze it also, so that it does not move when our match mode is going to be exact, and this is also a additional feature. Like it gives you the option from search from first to last or last to first. So here I will be using first to last, and then enter. So SBM product, there is some error E2. Let me just go through it once again. There are some queries in the chat option. Can it be done with dates also? Kash, we will be addressing all the issues later. Don't worry, your all queries will be answered. So Nilansh, सर search वैसे through बता that दूं, डेट F से भी हो column. सकता है, अगर किसी ने पूछा है तो डेट से भी पॉसिबल है, और वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. बट फिर दोस्तों, ये जो एक्स लुकअप वाला ये जो फंक्शन है, मैं आपको बताऊं पहले, वी लुकअप में अगर आपने इफ के फंक्शन के साथ यूज उसको किया हो कभी, तो इफ और वी लुकअप एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है किसी भी ऑडिटर के लिए. हम इतनी कंडीशंस डाल के इफ और वी लुकअप को लिंक कर सकते हैं, जो कि एक अकेले एक्स लुकअप फॉर्मूला के अंदर आ गई है. और जो हमें पहले वी लुकअप में एन आता था, अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो वो भी एक्स लुकअप में, जैसा कि नीलांश ने बताया, वो भी दूर हो गया. see, now all the codes are coming. So in explaining, might have missed something. So now I am able to generate all the codes. So I will be glad if from now on you will be using XLOOKUP rather than VLOOKUP. It will be more feasible, right? So the other part, that is fuzzy lookup and solver, I would request Udit to please explain this part. Udit sir, Yeah. I will just stop my screen sharing. Good evening, all.
नाउ यहाँ से अभी तक आपने देखा कि एक्स लुकअप क्या करता है, ठीक है। अब कभी कभी कंडीशंस क्या होती हैं कि आपके पास डेटा आया और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अब आप कोई भी लुकअप लगा के देख लो, चाहे वी लुकअप, एच लुकअप या एनी टाइप ऑफ लुकअप, ये आपके लुकअप्स काम नहीं करेंगे। रीजन, उसको सर्च करने के लिए एकदम एग्जैक्ट डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मास्टर डेटा है, सपोज इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। सो मेरे पास कंपनी का नाम है प्रॉपरली। अब मेरे को कहीं मेरे स्टाफ से डेटा आया और उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फॉर एग्जांपल संगम इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें मैं सर्च करूं संगम इंडिया लिमिटेड किस तरह से होना चाहिए था। सो संगम इंडिया लिमिटेड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, संगम इंडिया लिमिटेड, इंडिया इज इन ब्रैकेट। सो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है, इतने सारे डेटा को तो हम एक एक चेक करने बैठेंगे नहीं, और आपको क्या करना है, आपको तो मैच भी कराना है। सो यहाँ पे काम आता है हमारे फजी लुकअप। अगर आप इसको इस एक्सेल में नहीं देख पा रहे आपके पास ऑप्शन में, तो आप एक काम करना, गूगल पे जस्ट टाइप डाउनलोड फजी लुकअप, ओके। देन ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाएगा, आपको यहाँ पे सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। उसको आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और सेटअप को चलाना है। एंड देन आफ्टर द सेटअप आपको फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एड-इन्स में जाके इसको ऐड कर देना है। एड इन में जाके फजी लुकअप को ऐड कर देना है, जस्ट ये इधर से, और ओके प्रेस कर देना है। तो आप लोगों को भी ये फजी लुकअप का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फजी लुकअप इज, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द आउटलुक फर्स्ट। सो फजी लुकअप में यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेफ्ट टेबल, राइट टेबल। अभी अपन एक एक चीज करके सीखेंगे। देन लेफ्ट टेबल में सारे कॉलम्स कौन कौन से हैं, एंड राइट टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। देन देर आर मैच कॉलम्स एंड व्हाट आउटपुट वी वांट, एंड देर आर नंबर ऑफ मैचेस एंड सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड। उसकी अभी मैं बात करता हूँ। अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, जो हमारे पास डेटा है उसको सबसे पहले हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इंसर्ट में जाके टेबल ऑप्शन, और वी कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड टी। मेक श्योर योर टेबल हैज हेडर्स, लाइक माइन is having company name and pending amount, okay। सो सपोज आपके पास ये डेटा आया और आपको ये डेटर्स का डेटा है, आपको इनसे कुछ अमाउंट लेना था। सो हमको उनको एक लेटर पोस्ट करना है, और हमको एक ईमेल भी डालना है उनको। अब इनके ईमेल और एड्रेस कैसे लाएंगे अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपने क्या किया, इस डेटा को टेबल में क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल का मैं नाम दे देता हूँ रॉ डेटा, ओके। इस टेबल का मैंने नाम दिया रॉ डेटा, एंड मेरे मास्टर डेटा है, इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है कंपनी नेम, एंड यहाँ पे है फजी लुकअप के दूसरी टेबल, इसका भी नाम चेंज कर देता हूं मैं, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा सेकेंड, ओके। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मैं जाऊंगा लेफ्ट टेबल में। सो लेफ्ट टेबल का मतलब है हम लोग यहाँ पे कोई भी अपनी टेबल चूज कर सकते हैं। मैंने इस शीट में नाम दिया था लेफ्ट टेबल के लिए रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा को मैं लेफ्ट कॉलम में ले लेता हूँ। देन राइट टेबल में मैं ले लेता हूँ जो मैंने मास्टर डेटा की टेबल बनाई थी, दैट इज मास्टर टेबल 2। अब मेरे पास सारे कॉलम्स आ गए, जो जो उस टेबल में कॉलम्स है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मेरे को क्या मैच करना है, मेरे को नेम मैच कराना था। सो मैंने कंपनी नेम पे क्लिक किया, एंड इस टेबल में से सेकंड वाली राइट वाली टेबल में से मेरे को कंपनी अंडरस्कोर नेम मैच कराना है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसके लिए मैं ये बटन प्रेस करूंगा। आफ्टर प्रेसिंग द बटन मेरे को क्या किया एक्सेल ने, एक रिलेशन बना दिया इन दोनों में। एंड मेरे को अब आउटपुट डेटा में क्या चाहिए था, आई वुड बी वांटिंग द रॉ डेटा एज इट इज, देन मास्टर CIN नंबर आई डोंट वांट, कंपनी नेम आई वांट,
स्टेटस, क्लास, कैटेगरी, ये कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ एड्रेस और ईमेल आईडी चाहिए था, जैसा अपना वी लुकअप का काम होता है। सो मैंने सब हटा दिया, पीडब्ल्यू कैपिटल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, ये आई वांट दैट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, देन स्टेटस मेरे को नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस आई वांट, लेटेस्ट ईयर मेरे को नहीं चाहिए, बैलेंस शीट का ये भी नहीं चाहिए। मैं ये फजी लुकअप सिमिलैरिटी टैब रखना चाहूंगा, अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों रखूंगा। अब अगर मेरे को एग्जैक्ट मैच कराना था तब तो क्या है, मेरे को 1 की तरफ लेके जाना था सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को, पर हमारा ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे बीटन है, क्योंकि ये डेटा तो मैच ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर दें, सपोज हमने किया 70% एक्यूरेसी पे ये मैचिंग कर दे, एंड वी वांट आवर डेटा फ्रॉम दिस सेल, ओके, D2, वी हैव टू सिंपली प्रेस गो। अब ये क्या करेगा फजी लुकअप, इसने ये सारे जितने भी इसको मिल पाए मैचेस, देखो SPBL लिमिटेड इस तरह से लिखा था, इसने पूरे कॉर्पोरेट डेटा में से छांट के ले आया, ठीक। इंटरलिंक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इट वाज लाइक दिस। इवन अगर मैं इसमें जान करके स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दूंगा, जैसे ग्लोबल है, ठीक है, इस डेटा में ग्लोबल को चेंज करके मैं लिख देता हूँ GOLBAL, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब मैं अगर वापस से गो प्रेस करता हूं तो देखते हैं ये करता है कि नहीं। ये देखो अभी भी ये वापस से मेरा स्पेलिंग मिस्टेक के डेटा को भी मैच करके ले आया। अब ये जो बाकी की चीजें बची हुई हैं, अब उनको कैसे लाया जाए। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेक्टेशन को थोड़ी और कम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, 60% एक्यूरेसी पे सर्च कर दे, मतलब हो सकता है कि और भी कुछ संगम इंडिया लिमिटेड में IND लिमिटेड वो और कुछ कर सके। सो मैंने इसको राइट साइड पे लेके गया और सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड को, यानी मैंने अपने परसेंटेज को कम किया, लेस एक्यूरेसी के साथ देखते हैं। अभी क्या किया, सॉरी, यहाँ पे मैं वापस डेटा लेके आता हूँ। एक उदित एक सेल ऊपर लो। हाँ, अच्छा, एक सेल ऊपर ले लूं, ठीक है। हाँ, कंट्रोल Z करो, एक सेल ऊपर लो। इसके साथ ही ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, 60% सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड पे चलाया इसको और गो प्रेस किया। जैसे ही मैंने गो प्रेस किया, अब देखो जो पहले ये नहीं आ रहा था, वनस्ली टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड, वो भी इसने शो कर दिया। एक और डेटा आया। अब सिमिलरली मैं थोड़ा सा और इसकी पॉसिबिलिटी को कम करके देखता हूँ कि हम 50% में मैचिंग करके देखते हैं, 40% में क्या ये मिलते हैं जो बाकी बचे हुए हैं संगम इंडिया, ठीक है। 40% में मैंने चलाया गो। अब इस पे मैंने चलाया गो। अब देखो इसने पूरा मैचिंग करके दे दी संगम इंडिया इस तरह से। अब इसमें क्या दिखाया, इसने सिमिलरिटी इसमें 51% थी, फिर भी इसने सर्च करके दे दिया। लीस्ट सिमिलरिटी वाला कौन सा था, ये 49% सिमिलरिटी पे भी इसने सर्च करके दे दिया मेरे को, राजस्थान सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड, राजस्थान सिंथेटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके। सो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में अडॉप्ट कर लो। मेरे बहुत ज्यादा काम आता है, और मतलब कितनी बार होता है कि मेरे स्टाफ से कुछ टाइपिंग एरर हो गई या डेटा एंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। सो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था, यू कैन इमेजिन व्हाट कैन यू डू विद दिस फजी लुकअप थिंग। एंड ऐसे ही एक छोटा सा और टूल है जो मेरे को बहुत पसंद है और मेरी प्रैक्टिस को उसने 50% तक इजी बना रखा है। दैट टूल इज सॉल्वर। सॉल्वर टूल कहाँ पे मिलता है आपको, डेटा में जाके, डेटा एनालिटिक्स में मिलता है सॉल्वर। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो वापस हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, देन एडन्स, हियर इज अ सॉल्वर एडन। सॉल्वर एडन को हम इधर मैनेज में जाके गो करेंगे और यहाँ पे चेक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो अगर आपको नहीं दिख रहा सॉल्वर ऑप्शन तो आपको दिख जाएगा। और ये वाला ऑप्शन एक्सेल 2010 के बाद से आया है। सो एक्सेल 2007 जो यूज कर रहे हैं वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं जाता हूँ इस सॉल्वर के एग्जाम्पल में जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल से पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको एक
रैंडम नंबर से एक चीज करके दिखाता हूँ. Suppose I have some numbers between 10 to random numbers between 10 to 50. Okay. और मैं क्या करूँ इनको, ये मैंने 22 रैंडम नंबर्स बना दिए. तो अभी चेंज होते रहेंगे बार बार, इसलिए मैं डेटा चेंज कर देता हूँ. अब इनका टोटल आ रहा है 700. ठीक है. अब मैं आपसे कहूं कि मेरे को तो इनमें से कुछ एक नंबर चाहिए जिनका टोटल आता है 435. अब मेरे को नहीं पता कि 435 एक्चुअली आएगा या नहीं आएगा, हम ट्राई कर लेते हैं. अब आपको अगर ये करना होता तो आप कैसे करते? आप हर का एक एक ऑल्टरनेट टोटल लगा के देखते रहते. इसमें मेरे को आई एम श्योर कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं, आपको 22 फैक्टोरियल एग्जैक्ट 22 फैक्टोरियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगते आपको 435 तक आने के लिए. अब इसको इजी करने के लिए एक टूल है सॉल्वर. सॉल्वर का एक बेसिक चीज बता दूं, आपने कभी लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर पहले 11th-12th में सब्जेक्ट में पढ़ा होगा मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग. वहां पे अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि मैक्सिमाइज करूं मैं प्रॉफिट को सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट, की मेरे पास बजट इतना ही लॉटेड है, मैं एक प्रोडक्ट इतने ही क्वांटिटी में बना सकता हूँ, या फिर ऐसे कोई भी कांस्टेंट, वो भी अपन इससे कर सकते हैं. यहाँ पे अपन को कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, वो भी अपन इससे कर सकते हैं, और इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो अब इस एग्जांपल में मैं सॉल्वर को कैसे यूज करूं वो देखते हैं. अब सपोज मेरे को क्या करना है, इस सॉल्वर में कुछ एक बेसिक चीजें देनी है, यानी मेरे को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है. क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो इस लाइन में सेट करना होता है. मेरे को कौन से वेरिएबल चेंज करने हैं ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव आ जाए, और मेरी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी. ठीक है. फिर एक मेथड होता है, 3 मेथड से सॉल्व करता है, जीआरजी, नॉन लीनियर, सिंपलेक्स एंड इवोल्यूशनरी. ये 3 मेथड्स हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. अब आपको ये करके दिखाता हूँ. सपोज यहाँ पे डेटा चेंज ना हो, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब कुछ को. सो 1, देन अभी मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ, पर मैंने ये 1 किया क्यों, आपको उसका भी लॉजिक बताता हूँ. सो अब मैं अगर सॉल्वर चलाऊंगा और एक्सेल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, तो एक्सेल क्या करेगा, इसको पहले 0 करेगा, फिर चेक करेगा कि टोटल कितना हो गया, फिर इसको सेकंड को 0 करेगा, फिर चेक करेगा कि टोटल कितना हो गया, इसको 0 करेगा, फिर देखेगा. तो ऐसे ही एन नंबर, अगर यहाँ तक 0 करके देखा नहीं आया, फिर 2 को 0 करेगा, 3 को 0 करेगा, ऐसे एंडलेस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाएगा एक्सेल. अब उससे इजी तरीका है सॉल्वर. सॉल्वर में मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सेट करता हूँ. मेरी ऑब्जेक्टिव सेल है O34, जो था इस कॉलम का टोटल, O कॉलम का टोटल. मेरे को इसमें क्या चाहिए, वैल्यू 435. ओके. अब मैं कहता हूं कि मेरी कौन से वेरिएबल सेल्स चेंज हो, तो मैंने ये दिया, ये 1 या 0 होते रहे तो मेरे आंसर आ जाएगा. अब मैंने कांस्टेंट क्या दिया, अब सिर्फ 1 और 0 लाना है इसमें. तो मैं इधर एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं कि ये रेफरेंस, ये सिर्फ, इसमें कई सारे ऑप्शंस है, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, इंटीजर, बाइनरी. सो मैंने क्या किया, इसको एक बाइनरी में कर दिया. बाइनरी में 0 and 1. अब एक्सेल तो 0-1 की भाषा समझता है. मैंने प्रेस किया ओके. नाउ अब अगर हम जीआरजी नॉन लीनियर वाला सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे, सो थोड़ा सा टाइम लेता है. इसको भी मैं यूज करके दिखा देता हूं आपको. अगर मैंने दबाया, प्रेस किया, सॉल्व, अब ये आप इधर देख रहे होंगे लेफ्ट बॉटम पे इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं. इसको मैं अभी जूम नहीं कर सकता क्योंकि इन बिटवीन है. अब इसने क्या किया देखो, उधर एक वीडियो ऑन कर दो तुम्हारा. वीडियो, ओके सॉरी. सो इसने क्या किया, अब देखो इधर 0-0 प्लेस करके इसने क्विकली, मैं ओके प्रेस करता हूँ, क्विकली इसने 435 का टोटल ला दिया. अगर मैं इसको मैन्युअली करने चाहता तो यू कैन अज्यूम कि कितना टाइम लगता है मेरे को, पर विद इन सेकेंड्स इसने क्या किया, ये आंसर लाके दे दिया. अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चाहता हूँ, अगर मेरे को चाहिए ऐसे कुछ टोटल, मेरे को क्या करना है, बस ऐसा कुछ टोटल जिसका 515 हो सपोज, मेरे को नहीं पता है या नहीं है, या बहुत ऑड सा नंबर लेता हूँ, 469 है कि नहीं है, बस सॉल्व पे प्रेस किया. अब वो देखो वापस से उसने सब प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करना चालू हुआ,
और जैसे ही इसको आंसर मिल जाएगा 469 में मिल गया इसको, मैं जस्ट ओके प्रेस किया एंड ये नंबर्स निकाल के ला दिए इसने, मतलब ये कुछ नंबर्स है जिनका टोटल 469 आ गया। इतने सारे नंबर्स में से इसने लेके आ गया, सॉरी इतने सारे नंबर्स में से इतनी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसने टोटल लेके आया 469। अब ये देखो मेरे सीए प्रैक्टिस में ये काम कैसे आता है। कई बार आपके पास क्या होगा, ऐसा डेटा आता होगा क्लाइंट से कि इनवॉइस है, पार्टी का नेम है, उसने कितनी अमाउंट पे या क्रेडिट करेगा, उसमें टीडीएस कितना काट रखा है। मैंने एग्जांपल में 10% का टीडीएस लिया है और नेट अमाउंट कितना पे है, और ये चालान का डेटा आ गया कि ये मैंने चालान 15,095 जमा करा दिया। अब उस अकाउंटेंट से मिस्टेक क्या हुई, इसको क्लब करना भूल गया कि किस चालान में उसने किस डेटा को मर्ज किया था। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई अपने पास, तो इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए कि 2-2 3-3 को ऐड करके हमको बार बार देखना पड़ेगा कि 15,095 किसका टोटल आता है। अब सिमिलर गाइडलाइंस में देखो, इसमें मैंने क्या किया, सेम चीज करता हूँ, 1 लिखा, सिंप्लीफाई किया, TDS into 1, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था लिखने का, अब वही एक्सेल 0-1 करके देखता रहे और इसमें पता चल जाए कि इधर मेरा ऑब्जेक्टिव सेट इधर आ जाए टोटल 15,095। सो मैंने क्या किया, वही सॉल्वर में गया। इस बार मेरा ऑब्जेक्टिव सेल कौन सा है, इस बार मेरा ऑब्जेक्टिव सेल है I22। ओके, I22 मैंने किया। मेरे को वैल्यू क्या चाहिए इस बार मेरे को वैल्यू चाहिए 15,095, 15095। अब वही चेंज कौन से सेल्स में करना है, मेरे को इस बार करना है H कॉलम की सेल्स में। सो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया H कॉलम्स की सेल में। अब मेरे को कांस्टेंट क्या चाहिए था कि ये आइदर 0 हो या 1 हो, क्योंकि ये बार बार 0 और 1 करके देखेगा। सो मैंने एक बार इस कांस्टेंट को डिलीट कर देता हूँ और एक नया कांस्टेंट ऐड करते हैं, ऐड। देन मैंने कहा इस एक्सेल को सेल रेफरेंस को बाइनरी में ला दो, ठीक है, आइदर 0 या 1, ठीक है। अब देखो जस्ट मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस एग्जांपल में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के देख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कोई कर क्या रहा है बैकग्राउंड में। अगर मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, देखो ये पास में ले कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा होगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हो 1-1 इसको इतने सारे कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब ये वापस से स्टार्ट हुआ, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा है ये, ठीक है। ये काफी देर लगाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड स्टॉप और कीप रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू कर देता हूँ। अब ये देखो दूसरे एक फंक्शन का यूज करते हैं, सॉल्वर में गए, सॉल्विंग मेथड को मैं एक बार सिंप्लेक्स कर देता हूँ, मतलब सिंपल वेरिएबल्स है क्योंकि अपने 2 वेरिएबल्स है। अब ये क्या करेगा, थोड़ा तेज करेगा इस सब चीजों को। मैंने प्रेस किया, अब देखो इसकी स्पीड, अब ये चूज कर रहा है एंड फाइनली मेरे को क्या किया इसने, 11,000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो लगा चुका अभी तक, ये 15,000 हो चुके। अब फाइनली मेरे को इसने लाके दे दिया, ये वो एंट्रीज है जो इस चालान से मैचिंग है। मैंने ओके किया। अब तो आपके पास बहुत ही इजी हो गया इस चीज को। अब आप चाहे फिल्टर लगाओ इस पे, नहीं लगाओ, और इसको सेलेक्ट कर लो 0 वाले को। आपको वो तो मिल ही गए उस चालान में कौन कौन से नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर हैं 15,095। अब रेस्ट रिमेनिंग 2 भी मेरे को लेके आने। ये तो एक चालान के हो गए, रिमेनिंग 2 लेके आने बस। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये 0 वाले लेके आया, इसको एक नई शीट पे या नई जगह पेस्ट कर लेंगे। एंड अगेन सेम स्टेप्स मेरे को रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया और अगेन इसको 1 करना है। 15,000 वाले तो मिल ही गए हैं मेरे को। अब मेरे को इसमें क्या करना है, वापस सेम स्टेप, देन यहाँ पे वापस वही टोटल और सेम स्टेप्स बस फॉलो करने हैं। और आपको क्या है, सेकंड चालान का भी डेटा मिल जाएगा। यानी मेरे को चाहिए था 10966 और मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना पड़ेगा इस बार ये वाली सेल I47 को मेरे को सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव सेल में।
अब मेरे को वैल्यूज कौन सी चेंज करनी है, अब मेरे को ये वाली वैल्यूज चेंज करनी है जो मैंने सेलेक्ट की है एच कॉलम में नीचे वाली, ठीक है। सो ये हो गई मेरी वैल्यू सेट। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये आइदर 0 या 1 ही हो। तो मैं इसको डिलीट करके एक बार एक नई वैल्यू ऐड करता हूँ, देन ये इसको मेरे को करना है बाइनरी। ओके प्रेस किया, देन वापस मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसने कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए और मेरे को ये दे दिया आंसर मेरा। अब तो बस बचे हुए तीसरे चालान के ही है डेटा। सो ये कुछ एक टूल है जो हमारा काम आसान करता है। सोचो इसको, आपके पास कुछ आपने जीएसटी इनपुट ले लिया जल्दी जल्दी में, लास्ट डेट थी, आपने टोटल करके इनपुट डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास वो डेटा खो गया कि यार ये इनपुट मैंने एग्जैक्ट कैसे कौन कौन से इनवॉइसेस से लिया था। सो आप उसमें भी इसको आराम से लगा सकते हो। सो ये दो टूल्स है जो मेरे काफी फेवरेट है, मैं काफी यूज करता हूँ इसको। अब बाकी के लिए मैं वापस नीलांश को हैंड ओवर कर रहा हूँ बाकी फॉर्मुलेस के लिए। अब यहाँ से नीलांश आपको बताएगा। नीलांश, या होप ये दोनों फॉर्मुलेस आपको पसंद आए होंगे। सो अभी एक बार एक्स लुकअप को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देंगे एक बार एक्स लुकअप को। हाँ नीलांश एक बार एक्स लुकअप को। हाँ ठीक। हाँ अपन एक बार एक्स लुकअप को वापस से देख लेते हैं। एक्स लुकअप बेसिकली देखो क्या करता है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। सेम वी लुकअप में भी अपन सेम करते हैं, पहले लुकअप वैल्यू लेते हैं। मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ली ये। एक होता है लुकअप एरे, एक होता है टेबल एरे। टेबल में हमको पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है टेबल, मतलब कि उसके साथ मतलब वो चाहे सिंगल कॉलम हो चाहे दो कॉलम हो, हमें वो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लुकअप एरे होता है हम सिंपली जहां से चाहे वहां तक सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें लुकअप कराना है, बाकी का एक्स्ट्रा हमें करना ही नहीं है सेलेक्ट। वी लुकअप में क्या करते थे, ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन का आंसर होता था 4 कॉलम राइट में, तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ता था। इसमें लुकअप एरे सिर्फ जो हमें जहां हमारा लुकअप करना है वो सेलेक्ट करेंगे, राइट यहाँ तक। तो लुकअप हमारा कहाँ पे है, अभी हमें कोड चाहिए, तो हमारा एक कोड में है और ये रहा हमारा लुकअप। हम इसके साथ में इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे जैसे हम वी लुकअप में करते थे, राइट। सो ये हो गया हमारा लुकअप एरे। इसको हम कर लेंगे फ्रीज। फ्रीज की इंपॉर्टेंस रेफरेंसिंग के केस में होती है कि हम जैसे ही ड्रैग करें तो ये हमारा ड्रैग ना हो जाए। इसी के साथ में अब रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, रिटर्न एरे हमारा है यहाँ पे। इस केस में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलता है कि एसबीएम प्रोडक्ट ये उसकी रो नंबरिंग करेगा कि हमें अगर हम मान लो एफएलएस को ढूंढ रहे हैं तो एफएलएस 1 2 3 4 5th नंबर पे मिला है, तो हमारा लुकअप एरे में भी जो 5th नंबर का आइटम है वो हमें वो आंसर में लाके देगा, राइट। अगर मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लेता, मान लो ऊपर का एक मिस करके सेकंड कॉलम से सेलेक्ट करता, तो हमारा आंसर गड़बड़ आ जाता। तो ये दोनों एरे की लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सेम आएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो ये आ गया। इसके बाद इफ नॉट फाउंड, मान लो कभी ऐसा है कि कुछ नहीं मिला, तो हम अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, राइट। इसके बाद ये एडिशन, that is what I am explaining कि X lookup और V lookup let me just complete this। मैं वापस से आपको बेसिक डिफरेंस बता दूंगा। तो मैच मोड हमारा क्या होना चाहिए, इसमें एग्जैक्ट होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और फर्स्ट टू लास्ट। अगर ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट यही होगा, तो इसने हमें ये लाके दे दिया। देखो वी लुकअप, अब अगर मेरे को यहाँ पे मैं वी लुकअप से लाना होता तो मैं क्या करता, वी लुकअप गया, लुकअप वैल्यू हमारी है एसबीएम प्रोडक्ट कॉमा टेबल एरे है। अब टेबल एरे मैं कैसे सेलेक्ट करूं, क्योंकि वी लुकअप तो मुझे इस कॉलम से राइट में सर्च करके देगा, पर हमारा आंसर तो उसके लेफ्ट में है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वी लुकअप का और एक्स लुकअप का।
यहाँ पे वी लुकअप में अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, अगर वी लुकअप से मुझे आंसर चाहिए होता तो मुझे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इधर पेस्ट करना पड़ता। अब मेरा आंसर वी लुकअप से आ जाएगा। बट जस्ट इमेजिन कि आपके पास इतना बड़ा डेटा सेट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। डेटा के मतलब डेटा को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, जैसा आपके पास आया है आप रॉ डेटा की वैल्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझो उसकी, आप डेटा के साथ इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरे को अब मेरा आंसर आ जाएगा। वी लुकअप में मैंने लुकअप वैल्यू ये करी है, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया है दिस, कॉमा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 होगा एंड रेंज हमें चाहिए एग्जैक्ट। तो सी अब ये आंसर हमारा सेम आएगा। यहाँ पे बस फ्रीज करना था इसको। तो अब बेसिक आपको डिफरेंस पता लगा कि हमें वी लुकअप कब यूज करना होता है। बट मेरा डेटा मान लो यहाँ पे है और ये एसबीएम प्रोडक्ट्स, मान लो बीच में और भी डेटा और था, इतना दूर डेटा था, तो भी हम इसको एक्स लुकअप से कर सकते थे, क्योंकि एक्स लुकअप में हमें इंडिविजुअली एरेज को सेलेक्ट करना होता है, बस उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। आई होप दिस एग्जांपल इज नाउ क्लियर। हाँ नीलांश, एक बार इसका रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, तो अगर कोई मेंबर देखना चाहेगा तो अपन उसको हाँ, कर देंगे। so अपन एक बार आगे बढ़ते हैं ना, बिकॉज अपने पावर क्वेरी में भी टाइम लगेगा। सो अब अपना मेन जो आज का एजेंडा है कि ऑटोमेशन, ये सारी टेक्निक्स थी नॉर्मली जो आपकी हेल्प करेंगी, एफिशिएंट बनाएंगी आपको। अब मेन आता है पावर क्वेरी क्या चीज है, पावर क्वेरी से हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। सो आप अपने एक्सेल में देख पाएंगे, मतलब ये लेटेस्ट 365 वाला है, बट 2013 के बाद से ये चीजें आ गई थी, मतलब ज्यादा फीचर्स नहीं आए थे, बट नॉर्मल पावर क्वेरी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ये पावर डेटा है और यहाँ पे ये पूरा कॉलम इसको कहते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। सो बेसिकली पावर क्वेरी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा। मान लो आपके क्लाइंट का कोई ईआरपी सिस्टम वो यूज करता है, जहां से उसको डेटा डाउनलोड करके सीएसवी फाइल हो चाहे कुछ भी हो वो आपको सेंड करता है, और सेंड भी नहीं करता, वो डायरेक्ट अपलोड करता है, मान लो एज्योर क्लाउड पे या किसी भी क्लाउड सिस्टम पे वो अपलोड करता है। तो पावर क्वेरी हमें पूरी मतलब डायनेमिक, इतना ज्यादा डायनेमिक है, हमें हर जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का ये ऑप्शन देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे गेट डेटा। अब इतने सारे ऑप्शन है, हमें वो डेटा कहाँ से लाना है, तो वर्कबुक से है, जेसन फाइल है, पीडीएफ से भी ला सकता है, ये फोल्डर है, एज्योर क्लाउड से है, या फिर और कोई डेटाबेस होते हैं एसक्यूएल सर्वर, मतलब कोई सा भी हो अपने पास, यहाँ से अपन उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं हम अपनी नीड्स के ऊपर, कि हमें वो डेटा आ गया, अब हमें उस पर क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं, ये उसको रिकॉर्ड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी, जस्ट मैं थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद जो फाइनल हमारा डेटा है, जो हमें एक्चुअली में एनालिसिस के लिए चाहिए, वो हमें लोड करके दे देगा। तो सिंपली अपन डायरेक्ट चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मान लो आपके पास जीएसटी का ये डेटा है, मार्च का डेटा अपन लेते हैं। अपन एक सेकंड इसको हटाता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन मार्च का डेटा सिर्फ लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डेटा से फैमिलियर करा देता हूँ, पहले है क्या डेटा। तो ये डेटा है, ये मार्च की डेट्स हैं, ये प्रोडक्ट का नेम है वही, ये हमारे इनवॉइस नंबर जनरेट हुए हैं, टोटल अमाउंट है, ये जीएसटी है, और ये सप्लाई स्टेट है कि हमारा गया कहाँ कहाँ है। अब मुझे इसमें क्या, ऐसा डेटा हमारा क्लाइंट हमें हर महीने भेजता है। अब हमें रिटर्न वगैरह ये सब भरने के लिए अब हमें चाहिए जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कि मान लो हमारा सप्लाई स्टेट राजस्थान की राजस्थान में ही हो रहा है, तो हमें वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करके दे। अगर वो बाहर किसी और स्टेट में जा रहा है तो हमें आईजीएसटी कैलकुलेट करके दे। तो ये हमारा एक काम, जस्ट इमेजिन, आप अभी सोच रहे होगे कि मैं सिंपली यहाँ पे 2-4 फॉर्मूले लगा के वो कर पाऊंगा, बट अगर डेटा सेट आपके पास रेगुलरली ये आता है हर महीने, तो आप हर बार क्यों उस पे इतना टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पे काम आता है पावर क्वेरी। मैं ये वाला एग्जांपल लाइव पावर क्वेरी में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली ये डेटा, आई होप हमें 3 अलग अलग बस ये चाहिए, सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है और ये सब क्या है। तो मैं
सिंपली जाता हूं। अभी मैंने एक नया एक्सेल खोला, ब्लैंक एक्सेल। ये आप अभी थोड़ा ध्यान से इसको देखना, मैं क्या क्या स्टेप्स करूंगा। डेटा में गया, मैं गेट डेटा में मेरा वो एक फोल्डर में हमेशा मैं फाइल सेव करता हूँ, जहां जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आती है। तो ये जीएसटी सेग्रीगेशन वाला डेटा है और यहाँ पे मेरी वो फाइल है अंदर। तो मैंने इसको ओपन किया, ये वहां से लिंक करेगा, इसको ये डेटा ये फाइल मिली है उस फोल्डर के अंदर। मैंने इसको क्या किया, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म किया अभी, क्योंकि मुझे इस पे मैंने बताया ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सट्रैक्ट डेटा। अभी उसने एक्सट्रैक्ट किया, अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ये है। ये शीट मिली जो अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था, राइट। तो इसको मैंने ओके किया। ये पावर क्वेरी का विंडो है, नॉन एक्सेल से अलग विंडो एक ओपन होती है, इसको हम पावर क्वेरी विंडो कहते हैं। इसमें यहाँ पे एडवांस क्वेरी वगैरह, यहाँ पे ये फॉर्म, इसको एम लैंग्वेज कहते हैं बेसिकली, एक्सेल की जो कोडिंग चलती है। बट अभी हम सिर्फ इसके नॉर्मल जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनसे ही करना सीखेंगे। ये देखो यहाँ पे ये हैं स्टेप्स, बेसिकली एक एक स्टेप रिकॉर्ड हुआ है। ये अगली बार मैं फाइल लाऊंगा तो ये स्टेप्स डिफाइंड हैं, ये सिर्फ फाइल को चेंज करेंगे, स्टेप्स सेम रहेंगे मेरे, समझ रहे हो। तो हमें एक बार स्टेप्स को डिफाइन करना है और कितनी बार भी कंज्यूम करो। फिर अभी हमें क्या करना था, हमें सीजीएसटी, आईजीएसटी और ये सब कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हमें एक एडिशनल कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कॉलम है, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम का हमने यहाँ न्यू कॉलम नेम दिया हमने इसका सीजीएसटी, राइट। सीजीएसटी किसका कैलकुलेट करना है, जो राजस्थान की राजस्थान में है। तो मैं सिंपली इफ एल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको डेक्स एम लैंग्वेज के अंदर ही अपन इफ क्या कहते हैं, एम क्वेरी लैंग्वेज होती है बेसिकली। इफ अभी हमें क्या करना है, इफ हमारा सप्लाई स्टेट दिस इक्वल्स टू राजस्थान है, राइट। हमारा सप्लाई स्टेट इफ इक्वल टू राजस्थान है, तो हमें वो लाके दे, क्या लाके दे, कैलकुलेट करके कि हमारा इस पे हमें सीजीएसटी कितना लगा हुआ है। तो सीजीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हमारा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, किससे, 100 हम करेंगे 1 प्लस ब्रैकेट लगाया जीएसटी, मतलब ये फॉर्मूला है नॉर्मली फॉर्मूला, जीएसटी डिवाइडेड बाय 100। तो ये उससे डिवाइड करा इसने, राइट। और इस पूरे को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं जीएसटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और इसको कर दूंगा मैं इस पूरे को डिवाइड बाय 2। इफ देन, बस मेरे को फॉर्मूला एक सेकंड, इफ सप्लाई स्टेट इज इक्वल टू राजस्थान देन टोटल अमाउंट, हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे ये ब्रैकेट का है, ओके। तो यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएसटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। आई गेस थोड़ा फॉर्मूला में इश्यू आ रहा है, बस हम इसको टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जीएसटी परसेंटेज डिवाइड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड साइन लगानी है नीलांश। कहाँ? GST % डिवाइड बाय 2। ओके, अब एक इसमें एल्स और एल्स। ठीक है, अभी हमारे फॉर्मूला बन गया, इसमें नो सिंटैक्स एरर है, तो हम इस पे सिंपली करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होके आ गया। इंटू 100 भी करना पड़ेगा उधर फॉर्मूले में। वैसे ही CGST का SGST भी लग जाएगा। हाँ, सेम ही इसको हम कॉपी करके SGST में भी लगा सकते हैं। सेम हमें कस्टम कॉलम में जाना है, यहाँ पे SGST, और क्योंकि CGST अगर आएगा तो SGST भी उतना ही आएगा, तो सिंपली वो भी सेम होगा। और अगर हमें IGST चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सेम यहाँ पे अगर मैं IGST डाल देता हूँ, IGST, और यहाँ पे डाला, अब इक्वल टू राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू राजस्थान होगा, और हम ये डिवाइड बाय 2 जो कर रहे थे इसको हटा देंगे यहाँ से। तो सिंपली ये आ गया है। उदित सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस ठीक है, वही ठीक करा रहा था। तो अभी मतलब ये सही है ना? ओके ओके। तो हमारा CGST का कॉलम बन के आ गया, SGST का कॉलम बन के आ गया, IGST का कॉलम बन के आ गया। ये अलग अलग कैलकुलेट हो गए। हमें ये इतना ज्यादा पॉइंट्स तक नहीं चाहिए, तो हम इसकी नॉर्मल राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये सारे स्टेप्स यहाँ रिकॉर्ड करता जा रहा है, जो भी हमारा रॉ डेटा था उसमें। हम इस वाली, हमें फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। और अभी मैं इसको करूंगा क्लोज एंड लोड टू। इसके बाद ये हमें ऑप्शन देता है डायरेक्टली कि हमें सिंपली डेटा लोड करना है, या हम इसकी पिवट टेबल भी बना सकते हैं। तो अभी हम सीधा इसका डेटा लोड कर लेते हैं। तो देखो ये बन के आ गया पूरा। जो हमारे पास रॉ डेटा था वो इतना था, और ये CGST, SGST, IGST एक बार अपन फॉर्मूला डिफाइन टाइम लगा। बट अभी देखना, ये जैसे मार्च का डेटा था, ठीक है, आपके सामने है मार्च का डेटा। इसी में अगर मैं, अब सेम फाइल क्या हुआ, क्लाइंट ने अपने को से अप्रैल की भेजी, करेक्ट? हाँ, Correct. ये मैं यहाँ पे अप्रैल की फाइल लेता हूँ और इसको यहाँ इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया हूँ और मेरे को सिर्फ रिफ्रेश दबाना है। यहाँ पे डेटा में जाऊंगा मैं। एक मिनट, इसमें डेट्स दिखा दो पहले नीलांश। जो लेफ्ट हैंड साइड में डेट्स है ना, पहले हाँ। मार्च थी, अब हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? हाँ, इसके अंदर आप देख लो, ये डेटा जो अप्रैल वाला है, यहाँ पे अप्रैल की डेट्स हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो अप्रैल की डेट हो गई, और आपको पता भी नहीं लगा डेटा पर चेंज हो चुका है पूरा। आई होप यू आर एबल टू सी। मैं वापस से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे को अब मई का डेटा आया, मैं जाता हूँ यहाँ पे मई का करा, इसका हटा दिया, और यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे 14 है, ये 15 हो जाएगा अगर उसमें 1 मई से होगा तो। मतलब डेट जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वो देखनी। यहाँ चेंज देखना आप, मतलब पूरा डेटा ही चेंज होगा वैसे तो सिंपली डेटा में गया, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल किया, तो देखो ये मई का आ गया। अब तो जो मैं कह रहा था, एक बार डिफाइन किया अपने और ये हर बार आ रहा है। ये सिंपली एक बहुत बेसिक एग्जांपल था जिसके थ्रू हो रहा है। इसको ही हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अभी ये एग्जांपल हो चुका है, तो इस एग्जांपल में मैं थोड़ा अपडेट कर दूं सर। क्या होता है, हमारे पास काफी सारा जैसे कुछ काम होता है ना, जो हम छोटे, जो अपने स्टाफ होता है या आर्टिकल होता है, उससे हर बार करवाते हैं सेम रूटीन टाइप ऑफ वर्क, कि एक फाइल आएगी, तेरे को उसको ऐसे फिल्टर करना है, ऐसे डेटा को क्लीन करना है। अब आपको कभी कभार क्लाइंट का कुछ पता भी होता है कि क्लाइंट के यहाँ से डेट का फॉर्मेट पता है गलत आएगा, और हमें उस डेट के फॉर्मेट को ठीक करना है। तो आपको कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे, बिकॉज उनका जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है या उनके यहाँ जो प्रोसेस यूज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को फिल्टर लगाना पड़ता है, हम लोगों को डेटा क्लीन करना पड़ता है बार बार हर महीने। और ये हम नहीं करते, ये काम हमारा स्टाफ कर रहा है। तो आपकी स्टाफ की वहां डिपेंडेंसी खत्म। आप स्टाफ को कुछ आगे नेक्स्ट लेवल के काम पे लगाइए। रीजन बीइंग, यहाँ पे कुछ नहीं करना, फाइल लानी है, रिफ्रेश दबाना है। नीलांश, इसमें एक और एड ऑन कर दो कि बाई चांस हम क्यूमुलेटिव देखना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने क्लाइंट का मार्च
अप्रैल और मई तीनों महीने का डेटा साथ देखना चाहता हूँ, या सिर्फ 12 महीने का पूरा डेटा एक ही शीट पे देखना चाहता हूँ। तो नीलांश एक बार वो भी प्लीज कर दोगे? हाँ हाँ सर। तो मान लो मेरा मार्च और अप्रैल इसका भी डेटा चाहिए। यहाँ पे अभी 3 महीने का डेटा है, मैं तीनों का डेटा इस फोल्डर में लाके, क्योंकि मैंने इस फोल्डर का रेफरेंस दे रखा है, तो मैं सिंपली उसमें जाऊंगा और यहाँ पे मुझे यहाँ पे फिर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते के साथ ही यहाँ पे देखो ये सारा डेटा आ चुका है, मार्च, अप्रैल और मई का। ये मार्च का है, यहाँ से अप्रैल का स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मई का हो गया है। बस इसमें जो एक चीज ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि क्योंकि अपने कस्टमर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई क्योंकि नया कस्टमर आएगा तो उसके लिए हमें नया चीज डिफाइन करनी होगी, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका डेटा ऑलमोस्ट सेम ही आता है। बाय चांस कभी कुछ चेंज हुआ तो आपको इसके पावर क्वेरी के अंदर जाके वो छोटा सा चेंज करना होगा और वापस से आपका सेम उसी ट्रैक पे आ जाओगे। सो लोकेश सर, मतलब आप यही चाह रहे थे ना, मतलब तीनों का यस एक यस, हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया है। ये तो बहुत सिंपल मैंने आपके सामने करके दिखाया। अभी मेरे को उदित जी ने ये भेजा था डेटा कि एक बार ये करके दिखाना सामने की सामने। क्या डेटा था इसमें? एक यहाँ पे रेस्टोरेंट का डेटा था ये, कि उसकी मार्च का, मई का और अप्रैल का डेटा उदित जी उसका सबको रिटर्न। बताना चाहूंगा ये सर हमारे लाइव क्लाइंट का डेटा है, वी आर जस्ट शोइंग इट टू यू। उसमें से हम कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर कर रहे हैं कि इसका ऑनलाइन सेल आती है और ये इसका ऑनलाइन फाइल जनरेट होती है, और क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ये क्लाइंट यूज कर रहा है उसका रॉ डेटा कैसे आता है वो एक बार नीलांश दिखा रहा है। आप एक बार देखना ये डेटा कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आप इसको क्लीन करने बैठोगे तो आपको आधा दिन तो एक फाइल में लग जाएगा। ये इस तरीके से कुछ डेटा आता है जिसके अंदर कितनी रोज हैं, 5400 कुछ रोज हैं, बीच में सब ब्लैंक है, सब इधर उधर ये जीरो का, मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है यहाँ पे। तो ये डेटा आता है। अब इसका हमें जीएसटी वगैरह जो भी इनपुट जनरेट वगैरह सब करना होता है, मतलब उदित सर करते हैं वो। तो ये डेटा है और ये एक महीने की बात नहीं है, ये हर महीने ऐसा कुछ डेटा आता है। ये अप्रैल का भी डेटा देख लो, ये अप्रैल का डेटा है। इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 4000 कुछ रोज हैं। तो इसको क्लीन करने में और ऑर्गेनाइज करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका 4 दिन चले जाएंगे इस चीज को करने में। सो क्या किया यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी इसके लिए फाइल बना रखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा वही है ना, अनऑर्गेनाइज था तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। तो मैं आपको बस गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या हुआ है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखो, अपन ने अब इसने क्या किया था, यहाँ पे नॉर्मली डेटा आया था और इसके बाद देखो इतने स्टेप्स के बाद जाके मेरे पास फाइनल डेटा आया है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए हैं। अब मेरे को उसमें अगले महीने जब भी वो भेजेगा ना, तो मेरे को कुछ नहीं करना। आप जस्ट इमेजिन करो, आपका क्लाइंट हर महीने आपको एक चीज करने के पैसे दे रहा है और वो चीज आपने एक सिर्फ रिफ्रेश करने के पैसे ले रहे हो अब आप उससे। तो अब क्लाइंट को बतानी नहीं है। हाँ, और अब आपका काम इतना सा रह गया, आपको तो सिर्फ रिफ्रेश करना है और उसको मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक बार मेहनत कर ली है। तो इसमें क्या हुआ, मैं लाइव इसको उदित सर आप कैसे इसका करते थे जनरेट? हाँ, यही को इसको हाँ, मैं इसको एकदम अनपिवट कर दे। ठीक है, आप कंट्रोल मैं कंट्रोल ले लेता हूँ। मतलब क्योंकि एक्चुअली में जैसे उदित सर करते थे वो अच्छे से बता सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे इस पार्ट को। सब उधर से मेरे को अब जीएसटी रिटर्न के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को चाहिए इसकी डेट। ठीक है, मैंने इसको डेट को एक मिनट, डेट को ठीक कर देता हूँ। ये डेट चाहिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद मेरे को चाहिए होता है बिल नंबर, देन मेरे को उसका चाहिए होता है टोटल अमाउंट। बहुत नॉर्मल है, जैसे अपन जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं यूजिंग पाइवेट्स। अब उसका मेरे को चाहिए सीजीएसटी चाहिए, एसजीएसटी चाहिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है। तो बाकी मेरे को उसके सर्विस चार्जेस चाहिए और एक नेट अमाउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए एंड नेट अमाउंट चाहिए। ठीक है,
सो मेरे को ये सब डेटा आगे, अब तो आप बहुत अवेयर होंगे इस डेटा को कैसे यूज करके मैं बना सकता हूँ इजीली अपनी जीएसटी रिटर्न। जस्ट सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड डिस्काउंट, यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट भी आ जाएगी मेरे को। मेरे टोटल बिल था 110 रुपए का, क्लाइंट ने हमको 110 रुपए पे किए, उसमें से मैंने डिस्काउंट माइनस किया, देन उस पर 5% का सीजीएसटी और जीएसटी लगाया, ठीक है। तो नेट अमाउंट रिसीव हुआ मेरे को हुआ 101 रुपए। सो इस एग्जाम्पल में मेरा सारा डेटा क्लीन होके जो अनक्लीन था और ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके दिया है। इवन आप और भी चीजें लाइक किस मोड से रिसीव हुआ है वो तक जान सकते हैं। ये मेरे ये वाला पार्ट आया था मेरा, उसने कैश और स्विगी का जो आपने अनक्लीन डेटा में देखा था, स्विगी के आगे भी काफी सारी चीजें लिख रखी थी। सो स्विगी कॉम्प्लीमेंट्री था, ऑनलाइन ट्रांसफर था, क्रेडिट कार्ड से था, कैश से था। ये सारा डेटा इस तरह से भी ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। निलाश वो आगे अब मई और अप्रैल की फाइल दिखाते करके। हाँ ठीक है। सो बेसिकली ये जैसे मार्च का डेटा आया, हम इसमें जैसे पिछले एग्जांपल में करके दिखाया था, मैं अगर इसी रेस्टोरेंट के डेटा में अप्रैल और मार्च का हटा देता हूँ यहाँ से और अप्रैल का डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिर्फ इसको मेरे को रिफ्रेश करना है, तो देखो पूरा सेम स्ट्रक्चर था और यहाँ पे अब अप्रैल का डेटा आ गया है। आपको क्या करना पड़ा इसमें, कुछ वो डेटा कैसा भी डेटा भेजा हो उसके बाद, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर में आता है तो कुछ नहीं करना था, मुझे रिफ्रेश करना था, मेरे पास वापस से रिटर्न मतलब ये प्रिपेयर हो गया है। अब ये तो काम हो गया है रिटर्न फाइल करने का और ये अकाउंटिंग से रिलेटेड। मान लो आपका बहुत अच्छा क्लाइंट है, वो आपसे बिजनेस कंसल्टिंग भी चाहता है, बिजनेस कंसल्टिंग के रिस्पेक्ट में आप और क्या क्या कर सकते हो इस डेटा से। सो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा कि पिवट टेबल क्या होती है। बेसिकली पिवट टेबल आप लोग यूज करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग पिवट टेबल यूज करते हैं, बट उसमें आप क्या क्या मिस करते हैं उस पे मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल की एक्चुअल पावर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने यहाँ पे पावर क्वेरी से डायरेक्टली पिवट बनाई, हमें कोई डेटा बार बार रिफ्रेश नहीं करना। अगर आपने देखा हो तो मैंने इसको जब लोड 2 किया था तो डायरेक्टली ये पिवट टेबल में कराया, मैंने इसकी टेबल बनाया था, फिर उससे मैं पिवट टेबल बनाता, तो वो बार बार रिफ्रेश करने का ही झंझट रह जाता है। तो फर्स्ट चीज तो ये है, हम यहाँ से डायरेक्टली पिवट टेबल बना सकते हैं। दूसरी चीज है, अब क्या मैं आपको बता देता हूँ, मान लो मेरे को 3 महीने का डेटा आया और मुझे उसको कुछ कंसल्टिंग करना है कि आपका सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट होता है, आपको कहाँ फोकस करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में। सो मैंने तीनों का एक साथ किया और मैंने वापस से मैं अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा, अभी मैं इसका करके दिखा देता हूँ आपको कि मान लो मेरे को यही चाहिए कि मैं पे मोड ले लेता हूँ और नेट अमाउंट ले लेता हूँ, राइट। मैं इसके अंदर डिजाइन में ग्रैंड टोटल भी ले आया हूँ। सो मेरे अभी सिंपली बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि ये सारे पे मोड थे और ये हमारा नेट इतना अमाउंट आया, और ये मैं इसमें डेट भी डाल देता हूँ, ये हमारी डेट होगी, ठीक है। डेट को हटा देते हैं, मंथ रहने देते हैं बस। ये हमारा अप्रैल का डेटा आ गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करा तो देखो मेरे पास मार्च का भी डेटा आ गया और मई का भी डेटा आ गया है। आई होप आप सब देख पा रहे हैं, ये पूरा मेरे पास डेटा आ चुका है। अभी मैं इस डेटा के साथ क्या क्या बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब अगर मेरे को मान लो ये जानना है सबसे ज्यादा सेल किसके पास आती है, मतलब कैसे आती है, तो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो अभी मैं पावर मतलब पिवट टेबल में क्या कर सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा कि आप लोग क्या क्या शायद मिस करते हो। कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोग करते होंगे, बट आई हैव टू जस्ट टेल। तो हम इसमें नॉर्मली सबसे पहले तो है हम इसका पिवट चार्ट बना सकते हैं जो कि डायनेमिक होता है। अपन नॉर्मल चार्ट बनाते हैं उसमें यहाँ पे जैसे ही हम मान लो अगर मेरे को इसकी सेल देखनी है और मैं ये लाइन से ले लेता हूँ या इसी से रहने देता हूँ, तो मैंने इसका चार्ट बनाया है मार्च। अब आप देखो ये नॉर्मल चार्ट बनना पॉसिबल ही नहीं था,
ऐसा आप नॉर्मली चार्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है, कि मार्च अप्रैल मई का अलग अलग आ जाएगा और उसमें अलग अलग आ जाएंगे। तो ये पिवट चार्ट होते हैं, ये अलग होते हैं नॉर्मल चार्ट से। अभी आप इसमें एक स्लाइसर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मान लो मेरे को सिर्फ, मान लो मैं किसी मीटिंग में हूँ, तो मैं मंथ को एड ए स्लाइसर कर देता हूँ या इसको टाइमलाइन में ले जाता हूँ। अभी इसका स्लाइसर का एक अलग से बता भी देना, जनरली मेंबर्स को अपने स्लाइसर का पता नहीं रहता कि हाउ टू यूज इट। ठीक है, तुम अभी देखो स्लाइसर में क्या होता है हमारे यहाँ पे, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ वापस से, और एक बार को मैं यहाँ मंथ हटा देता हूँ, ठीक है। ये कैश वगैरह, ये देखो चार्ट जैसे जैसे मैं ऑपरेट कर रहा था ये अपने आप इसने चेंज कर लिया। अभी ये टोटल आ रहा है मेरे पास तीनों महीने का। अभी मैं क्या करता हूँ, मंथ को यहाँ डाल देता हूँ स्लाइसर में। स्लाइसर क्या चाहिए, मैं जिस पे क्लिक करूंगा उसका डेटा आएगा सिर्फ। मान लो मेरे को अलग अलग महीने का, अब आप आराम से देख पा रहे होंगे किसका हाईएस्ट है किसका लो है। अप्रैल का देखा, मार्च का देखा, मेरे को तीनों का देखना है तो यहाँ मल्टीपली सेलेक्ट करूंगा, तीनों का भी आ जाएगा डेटा। ये किसी भी चीज में कर सकते थे। मैं इसको उल्टा भी कर सकता था कि मंथ को तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, और पे मोड को मैं ले जाता हूँ स्लाइसर में, पे मोड को डाल देता हूँ स्लाइसर में। अब मेरे को ये देखना है कि मार्च में कैश, मतलब तीनों महीनों में कैश की सेल क्या रही है, तो सिर्फ कैश का दिखाएगा ये मुझे। सिर्फ मुझे देखना है कि मेरा स्विगी से कितना आया है, तो देखो मार्च अप्रैल और मई स्विगी से इतना आया है। अभी देखो आप कैश का देख भी पा रहे होंगे कि मार्च में लॉकडाउन नहीं था तो कैश सेल बहुत ज्यादा हुई थी, फिर वो कितनी ग्रेजुअली लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद ये कितनी गिर गई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अभी डेटा, क्योंकि 3 महीने का है तो इतने आंसर्स नहीं निकल पाएंगे इससे। बट इमेजिन करो आपके पास 1 साल का पूरा डेटा आ गया, तो इससे बिजनेस इंटेलिजेंस हमें मिल सकती है कि हमें कहाँ पे, मतलब क्लाइंट को कहाँ फोकस करना चाहिए और कहाँ पे वो अपना सेव कर सकता है, राइट। सो ये तो चीजें थी इसमें। अभी और क्या इसमें ऐड हो सकता है, ये पावर पिवट भी हो गया है। मैं मंथ नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ अभी मैं। परसेंटेज का ही बता दो ना। हाँ, अभी जैसे मान लो सबसे पहले तो मुझे इसको सॉर्ट ही करना है, तो आप इसको सॉर्ट कैसे करोगे। यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कि मेरे को इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट का ऑप्शन तो यहाँ पे आएगा। और ये भी अगर सॉर्ट करूंगा तो ये तो अल्फाबेटिकली वाइज ऑलरेडी सॉर्टेड है। मान लो मेरे को अमाउंट से इसको सॉर्ट करना है कि सबसे ज्यादा सेल मेरे को यहीं दिख जाए, तो कैसे थी ये, नॉर्मली ऐसे हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नेट, ये पे मोड है, इसको हमें सॉर्ट करना है, तो इसके अंदर जाएंगे हम, मोर सॉर्ट ऑप्शंस के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बट किसके बेसिस पे, सम ऑफ अमाउंट के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो देखो अभी ये आ गया पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम आरामदारी से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल ऑनलाइन ट्रांसफर से हुई थी, फिर कैश से हुई थी, फिर ऐसे से हुई थी, तीनों महीने का कंबाइन। इसमें भी हमें ज्यादा क्लियर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नेट अमाउंट को इधर लेके गए वापस से, और इसके अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे हमें और ऑप्शंस मिलते हैं अपने डेटा को अरेंज करने के लिए। तो मैं इसमें काउंट भी डाल सकता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांसफर से मेरे कितने ट्रांजेक्शन हुए वगैरह, तो ये उससे भी दिखा सकता है कि ट्रांजेक्शन इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा स्विगी के आते हैं, पर शायद हो सकता है स्मॉल अमाउंट के हों इसलिए वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हो। तो बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अभी मैं इसको सम रहने देता हूँ, और क्या करता हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले लेता हूँ। देखो ये तो होती है एब्सोल्यूट फिगर्स, राइट। ये आती हैं उसकी रिलेटिव फिगर्स कि हमारा 23.34% कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑनलाइन ट्रांसफर का पूरे पेमेंट से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन इन इनके ऑप्शंस में अंदर जाके अपन कर सकते हैं। सो पावर पिवट टेबल में यही चीजें होती है मेनली। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन, ये मैं बता ही चुका हूँ दोनों चीजें। ये सब बाकी सब पिवट चार्ट बता दिया है, इसके अंदर अपन अंदर कैसे जाते हैं ये बता चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अपन मिस आउट कर देते हैं, तो अपन को खुद से ही कभी आप हो तो इन चीजों को भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये बहुत खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कि कैसे कैसे क्या क्या होता है तो ये खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ए हेड्स अप कि आप एक बार इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करो। इसमें असली पावर पिवट टेबल्स की होती है।
कहने का मतलब है क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है कि किस टाइप का क्लाइंट है, किस टाइप का डेटा है, उसको हमसे क्या चाहिए या हम उसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया है कि हमारे पास क्लाइंट से डेटा आता है। अभी एक मेजर चीज रह गई है, वो है कि मान लो हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करना हो। ये तो अभी तक मैं आपको एक्सेल फाइल्स के थ्रू एग्जांपल बता रहा था। अभी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कहीं और से, जैसे डेटाबेस से, कहीं डेटाबेस से हमें कुछ करना है डायरेक्टली, क्लाइंट का डेटा उसने हमें दे रखा है, क्रेडेंशियल्स वगैरह कि आप डेटा यहाँ से ले लो वगैरह जो भी है, तो हम वहां से कनेक्ट कर पाए डायरेक्टली एक्सेस एक्सेल से। सो इसका बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बेसिकली data.gov.in। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका थोड़ा ब्रीफ कर दो एक बार निलाश कि इसका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल का, ताकि सब लिंक कर पाए। ये बट मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, यही नहीं कि मतलब वेबसाइट होती है, यहाँ होती है। अपन को डेटा अपन गूगल करते हैं। गूगल किस लिए करते हैं? बेसिकली अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? गूगल के पास है। तो अपन वहां से जाके अपन लेते हैं उसको, इंफॉर्मेशन को। तो वही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ ला रखी है, बट एक अलग सेंस में ला रखी है। मेरे को वहां से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरे को रिफ्रेश करना है, मेरा सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ आ जाएगा। जैसे शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स की प्राइस चेंज होती रहती है डेली, अपन को देखना, पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो अपना पोर्टफोलियो भी बन जाएगा यहाँ पर। हाँ, मतलब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा कैसे अपन शेयर प्राइसेस अपडेट होती हैं लाइव में, आपको करके दिखा दूंगा वो चीज। तो बेसिकली क्या कहना है कि अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ पे डेटा है, बट हमें उससे कनेक्ट करना आना चाहिए और वहां से डेटा लेके आना चाहिए। वो हम डेटा और इसके थ्रू कर सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए डेटा के अंदर, मतलब कि हम वेब से भी डेटा ला सकते हैं। वेब से डेटा अपना आता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब में आप कहीं से भी, मतलब आपको कोई टेबल भी दिख रही है ना कहीं पे भी, तो वहां से भी आप ये डेटा उठा के ला सकते हो। कोई वेबसाइट पे अपन विकीपीडिया पे जाते हैं, जैसे विकीपीडिया पे मान लो कोई एक टेबल है, वो टेबल आप उसको कॉपी पेस्ट करो, उससे अच्छा है स्ट्रक्चर्ड वे में आप यहाँ पे ला सकते हो सिर्फ फ्रॉम वेब से। वो यूआरएल आपको पेस्ट करना है, वो आपको सारे ऑप्शन दे देगा कि इस यूआरएल के अंदर ये सारी टेबल्स हैं, आपको कौन सी टेबल चाहिए। तो जो हम एग्जांपल करने चाह रहे हैं वो थोड़ा उससे ब्रॉड एस्पेक्ट्स में है कि हम एपीआई के थ्रू, एपीआई की होती है वगैरह, बेसिकली हमें कनेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह चाहिए होती है, हमें हमारी खुद की चाहिए होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो खुद के, जैसे किसी अभी बोला था सर ने कि हमें ऑनलाइन डेटा चाहिए उसका, स्टॉक मार्केट का, शेयर प्राइस का। तो बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने एनएससी से ले रखा है कि हम डेटा सेल करेंगे। वो एनएससी को पे करते हैं और वो हमसे लेते हैं, बट वो अलग अलग वे में सेल करते हैं। एक तरीका है उसमें से एपीआई। तो ऐसे ही ये अलग एग्जांपल था। data.gov.in का मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ अब क्या है। ये गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब हर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट खुद अपलोड करती है डेटा, चाहे रियल टाइम। अब सेक्टर्स देखो, इसमें हर टाइप के सेक्टर्स हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी है, कॉमर्स भी है, वाटर एंड सैनिटेशन भी है। तो जो भी रिलेटेड डेटा है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ। ऐसे ही और भी साइट्स हैं, वहां पे एपीआई की वगैरह अवेलेबल होती है। आप उनको, जैसे फॉरेक्स का डेटा चाहिए आपको, तो वहां से कर सकते हो। मेरे को स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए, तो ग्लोबल डेटा फीड्स के थ्रू मैं जाऊंगा, वहां से उनका एपीआई की परचेज करूंगा। कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं। ये data.gov.in सब फ्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, तो सब फ्री देता है। तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल चूज किया है। तो सीधा अभी अपन एग्जांपल पे चलते हैं। पावर क्वेरी के थ्रू मैं ऑनलाइन डेटा कैसे रिट्रीव कर सकता हूँ। सो अपन एग्जांपल में जैसे लेते हैं यहाँ पे, इसी का अभी इसका ले लेते हैं, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जस्ट सपोज ये डेटा है हमारे पास। सो इसके अंदर बहुत सारी, मतलब नॉर्मल जब आप ये सीखोगे या फिर करोगे तो इसमें पता लगेगा कि कैसे करना होता है। ये एपीआई, ये इसकी फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग जस्ट थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये अलग ही चीज है, तो अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं इसमें, कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स देने हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे ये सारी चीजें डिफाइंड है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए अपनी क्वेरी प्रिपेयर करनी होती है। जस्ट दैट्स इट। इसके लिए मैंने ये समझाया कि सेम चीजें आपको वहां दिखेंगी, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रिपेयर करना है शीट।
सो मैं क्या करता हूँ, मैंने डायनेमिक बना रखी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। एक रिसोर्स आईडी है, मतलब हर अलग सेक्टर की अलग रिसोर्स आईडी है, मैंने इसको कॉपी किया, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ पे अभी देखो ये कंपनी नेम ये अलग अलग हैं, इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा सारा। देखो पूरा चेंज हो गया और ये अब मेरे पास कुछ और डेटा आ गया है। कुछ और डेटा का बोले तो पॉल्यूशन का डेटा आ गया है। ये रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम डेटा बोले तो मैं यहाँ पे जयपुर का देखता हूँ, तो ये जयपुर का डेटा है 6 बजे का, आज की डेट है ये और आज का है ये। जयपुर का अलग अलग एरियाज का डेटा है, तो ये रियल टाइम डेटा हम ला पा रहे हैं। तो नॉर्मली कैसे ला पा रहे हैं, कनेक्ट करके ला पा रहे हैं। दूसरी आई होप किसी को नीलम, जिसको जो अपना अपन एमसीए वाला डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में इसको कैसे डिस्कस करेंगे उस पे लेके बताओ। हाँ ठीक है, तो वही कह रहा था कि इसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपना क्लाइंट किस उससे है। मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मेरे को कंपनीज का डेटा लेके आना है, तो यहाँ पे कॉमर्स में मतलब एक बार बता देता हूँ मैं हम क्या करना चाह रहे हैं। सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर हुई, वो हमारे पास एक्सेल के अंदर आ जाए। मींस अगर कोई भी नई कंपनी रजिस्टर हो, आपने रोज सुबह ऑफिस गए, केवल एक्सेल पे जाना है, रिफ्रेश टिकाना है, आपको पता लग जाएगा आज कौन सी कंपनी रजिस्टर हुई या कल कौन सी कंपनी रजिस्टर हुई। आप ये देखना चाह रहे हैं, एमसीए का डेटा हम गेट कर रहे हैं। आप तो जस्ट ये इमेजिन करो कि आपको तो नए नए क्लाइंट चाहिए, एक कल ही कंपनी रजिस्टर हुई और आपको चाहिए कि वो आपकी क्लाइंट बन जाए। तो आप इसके लिए सिंपली ये हर महीने क्वार्टरली अपडेट होता है। जैसे कंपनी मास्टर डेटा और राजस्थान अप टू 31 मार्च 2021 है ये, तो मेरे को ये डेटा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे लिए। तो सिंपली पूरी जैसे पावर क्वेरी में प्रिपेयर किया है इसका, तो अभी मेरे को इसकी रिसोर्स आईडी चाहिए होगी। बस यहाँ पे मैं सिंपली अपना जो प्रिपेयर किया उसमें जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को अपनी रिसोर्स आईडी चेंज करनी है और मैं डेटा क्वेरीज यहाँ पे मैं इसको, ये हमारा देखो रिफ्रेश होगा, वेटिंग फॉर एपीआई, ये वहां से कनेक्ट करेगा और यहाँ पे मैंने इसको डाल रखा है टॉप, मतलब बहुत बड़ा डेटा हो जाता है तो 10,000 कंपनीज का लाके दे दे। 67,000 कंपनीज कुछ हैं, पर अभी देखो इतना टाइम तो ऑलरेडी लग ही रहा है इसमें। वहाँ एक्सेल में नहीं आता ना डाटा साइट पे। आ जाएगा मनोज जी, आ जाता है। ये एक्सेल से तो है, मतलब नहीं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो डाटा डाला हुआ है वो किस फॉर्मेट में डाला हुआ है? मैं आपको ये, हाँ तो यही चीज तो है कि सबको यही बताना चाह रहे हैं कि जितना भी डेटा किसी भी जगह मेंटेन हो रहा है, सब एक्सेल और टेबल के फॉर्मेट में ही मेंटेन हो रहा है। वहां डेटा टेबल के फॉर्मेट में है और हम उस टेबल के फॉर्मेट को एक्सेल पे उठा के लेके आ रहे हैं। क्वेरी लगाई हुई है इसमें एक्चुअली। सर मैं जो आपका क्वेश्चन है मैं उसका एग्जांपल यही दूंगा कि यहाँ पे डेटा सेट्स क्रिएट कर रखे हैं, वहां पे आपको नॉर्मल एक्सेस नहीं मिलेगी यहाँ से डेटा लाने की। अगर आपने नोटिस करा हो थोड़ा तो देखो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, कंपनीज जाऊंगा, ये डेटा जब मैं ला रहा था तो नॉर्मली लिमिट दे रखी है यहाँ पे। अगर आपने सब कुछ नहीं बना रखा है तो यहाँ पे मेरे को फ्री उसके लिए सिर्फ 10 की लिमिट देगा ये। दिस इज ए सैंपल की रिटर्न्स मैक्सिमम 10 रिकॉर्ड एट ए टाइम। और अभी हम कितने लेके आए, 10,000। हाँ, तो ये कनेक्ट करके ही हो पाएगा, नॉर्मली डेटा ऐसे अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है ये। मतलब कहीं कहीं होगा जहाँ पे आपको सीधी एक्सेल फाइल मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, बट वो भी तो एक प्रोसेस है। मैं आपको ऑटोमेशन इसकी पावर क्वेरी बनाने के लिए अब पता कैसे चलेगा कि उसका डाटा किस फॉर्मेट में है? वो सीखना पड़ेगा पावर क्वेरी। ऐसे मतलब देखिए आज मैं पावर क्वेरी तो हाँ, यही समझाना चाह रहा था कि पावर क्वेरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी मैंने आपको एक शुरुआत में 1-2 एग्जांपल करके दिखाए, बट ये चीज कैसे करनी है ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। बस ऐसे भी करा जा सकता है, बट इसको समझाने ये 2 घंटे के सेशन में पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ नहीं, आई नो पावर की तो वेरी बिग टॉपिक। नहीं, वो ओनली मैं फॉर्मेट जो जानना चाह रहा था कि इसमें फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, जो आपने क्यूरी जो रन करी है उसका फॉर्मेट कहाँ
कहाँ पे है? बनाया ये फॉर्मेट तो बनाया सर है, ये रहा ना क्या क्या डेटा फॉर्मेट, चाहिए। ये नॉर्मली उसने स्ट्रिंग्स दे रखी है हमें, क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए, तो नॉर्मल बाकी काम तो मेरा खुद का है। यहाँ से एपीआई जो इन्होंने मतलब ये रेस्ट्रिक्शन दे रखी है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं वापस दिखा देता हूँ नॉर्मली, कि बाकी चीजें तो मुझे खुद को ही परफॉर्म करनी थी, कैसे करना है। तो आपकी ये क्यूरी की जो सेटिंग है वो आप बता, हाँ ये वाली जो, हाँ इसमें क्या स्टार्टिंग से सोर्सेज से जैसे आप गए, सोर्सेज से ये डेटा यहाँ से बेस यूआरएल है, उसका रिसोर्स आईडी जो मैंने कॉपी करी वो उसमें कनेक्ट करेगा, और मेन जो इनका है वो ये है बस। ये एग्जैक्टली आपको सेम यहाँ मिलेगा जैसा यहाँ पे है ना, ये एपीआई ओके की फॉर्मेट, ऑफसेट और लिमिट, अपन को तो यहाँ इस पे ध्यान देना है, बाकी काम तो आपका फिर खुद का है कि आपने क्या क्या इसमें और किस तरीके से आपने डेटा को मंगाया है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं पे था कि वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि आप कैसे डेटा लेके आओ, बट उसके लिए पावर क्वेरी आपको आनी चाहिए तभी आप ला पाओगे। यस तो ये इसका डेटा था, आप किसी भी चीज का डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो। मैं एक और जस्ट बहुत छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मान लो मंडी का डेटा है, मतलब मंडी और में, उस डेटा में दिखा दो ना क्या क्या डेटा आया है, एक मिनट नीलांश, हाँ जो आपने एमसीए से गेट किया है। हाँ ये सारा डेटा है सर, आप एक्सप्लेन कर दो प्लीज। देखिए इसमें अपना कंपनी नेम आ गया, और फिर एक बार उधर करना थोड़ा राइट साइड में, फिर हमारे पास उस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, आरओसी कौन सा लगता है, क्योंकि हमने राजस्थान सेलेक्ट किया है तो जयपुर आ रहा है उस कंपनी का। अब यहाँ देखिए ईमेल आईडी क्या है, अब हमारे पास उसका ईमेल आईडी तक है। तो आपने एक चीज नोट की होगी प्रैक्टिकली भी, कि आप लोग भी जब अपनी किसी क्लाइंट का ईमेल कंपनी रजिस्टर कराते हो, उस क्लाइंट के पास काफी सारे ईमेल्स आने लग जाते हैं बहुत से लोगों के, वो जो सीए नहीं है या सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो लोग भी उस क्लाइंट को अप्रोच करने लग जाते हैं। तो दिस इज द वे, तो हम पूरे इंडिया को अपना प्रैक्टिस एरिया बना सकते हैं कि इंडिया में जहां जहां कंपनी रजिस्टर हुई हमने ऑटोमाइज वे में वहां मेल भेज दिया। ये पावर क्वेरी से हम मेल का फीचर भी बना सकते हैं। मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि हमने केवल एक नंबर डाल के व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए, तो वैसे ही हम यहाँ सिस्टम लगा सकते हैं कि जैसे ही कोई नया ईमेल आईडी ऐड हुआ, हम चाहे दुनिया में कहीं रहे, हमारा सिस्टम अपने आप एक ईमेल बना के उस क्लाइंट के पास हमारी सर्विसेज का एक पर्चा भेज देगा। सर ऑल ये आप ओवर इंडिया हम कहीं पे भी बैठे बैठे। एकदम सही याद दिलाया इस टाइम पे मुझे। नॉर्मली जो ईमेल से बात थी उसके लिए मैं काम मतलब ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, बट उसके लिए क्या अभी लिमिटेशन है थोड़ी सी कि आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्लो वगैरह मैंने कर रखा है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ईमेल आईडी देनी है और अपना अटैचमेंट तैयार रखना है उस फोल्डर में, और सिर्फ इस फ्लो पे क्लियर करना है। तो नया माइक्रोसॉफ्ट पावर 365 के एडवांस फीचर में ये नया चीज आया, पावर ऑटोमेट करके। वो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे और वहां पे ये फ्लो में अभी मैंने कोई फ्लो बना नहीं रखा है, बट जो भी बना रखे होते हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। मेरे को सिर्फ उस पर क्लिक करना है और अपने आप देखो लिखा रहा है ना, एक्सेल ऑनलाइन प्लस पावर ऑटोमेट, ये ऑटोमेटिकली नए जो भी आए होंगे उन सबको मेल भेज देगा आपकी तरफ से। सो बहुत सारी अरे लेकिन अपने यादव साहब और लोकेश जी, ये अपने सीए प्रोफेशनल्स को अलाउड नहीं है मेल नहीं भेजना नहीं अपना सर, इसके इंट्रोड्यूस अंदर करना। अपन को रेट कोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी की नई कंपनी बनी तो We are not supposed to introduce ourselves like this. हम्म, अपने अलाउड नहीं है लोकेश, नहीं अपन सर, अपनी बस साइट आपको मान लो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इनवॉइस भेजना है, कुछ भी एग्जिस्टिंग भेजना को है। एग्जिस्टिंग को आप हाँ। भेज सकते हैं, बट कोई नई कंपनी आपको बन रही है ना, हाँ सर, उसमें आप मानो प्लीज। आपके 10 क्लाइंट हैं, आपको उनको डेली या वीकली बेसिस पे कुछ अपडेट भेजना हाँ होता है, वो तो सब है, आप वो सब ठीक है, दैट हाँ इज सर, वो भी एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब और ये जो आपने जो यादव साहब, ये जो नीलांश जी, जो ये जो अपने जो डेटा वाली साइट जो ले रहे हो ना, ये हाँ 2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेटा माइनिंग करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, और उसकी नोडल एजेंसी बनाई थी डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को। और उसमें कंसेप्ट ये है, इवन अभी भी जो अपने जो थोड़ी सी अभी जो इनकम टैक्स का पोर्टल अभी ढंग से चालू नहीं हो पाया है, ठीक है, वो 2-3 दिन में हो जाएगा, बट जो आप यदि उनके कंप्यूटर में अपनी खुद की आप अपनी डिटेल्स देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके पास आज भी अपनी इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं। यदि हमने कोई छोटा सा भी 10 रुपए का पेमेंट यदि किसी भी पेटीएम या किसी के थ्रू किया हुआ है तो उनके पास रिकॉर्ड है उस चीज का।
जो टारगेट है, जो अपने यहाँ जो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर टारगेट है कि जो पैरेलल कैश इकोनॉमी चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाए 2 नंबर वाली, उसको तो मतलब इसको अपन हर सेंस में यूज कर सकते हैं। देखो जैसे अभी या स्टॉक मार्केट का किसी ने बात करा था, स्टॉक मार्केट का मैं आपको खुद दिखाता हूँ, मैं रोज करता हूँ ये काम। यहाँ पे निफ्टी 50 का डेटा है आपका, है ना, निफ्टी 50 का देखो रोज अपडेट हो रहा है। जस्ट सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से 8 तारीख का डेटा मैंने डिलीट कर दिया है। 8 का जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे 8 तारीख का डेटा वापस आ जाएगा। ये भी देखो यहाँ पे पावर क्वेरी, रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, ये भी पूरा पावर क्वेरी से हो रहा है। और देखो ये आ गया 8 तारीख का डेटा। आप इसको कर लो आराम से वेरीफाई, यही मिलेगा आपको 8 का। आज 9 तारीख हो गई है, अभी मैंने अपडेट किया नहीं है, इसको कनेक्ट करके अपडेट करूंगा। मतलब कल का रिफ्रेश करा है मेरे को, उसमें बस टाइमिंग चेंज करनी है, तो ये आज का डेटा आ जाएगा। और ये इसका ही नहीं है, सिर्फ इसका डेटा ही अपडेट नहीं हो रहा है। आप देखो यहाँ पे 600 कंपनीज का डेटा अपडेट हो रहा है। तो मतलब इसका कोई एक वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ जाके रुकना है, आप तो कुछ भी कर सकते हो इससे। ये ओपन हुआ है क्या? एक सेकेंड, नहीं अभी ओपन नहीं हुआ वो डेटा। हाँ अब हो जाएगा। डोंट अपडेट, ये है, ये देखो सारा डेटा है इसमें। आप कंपनी बोलो, जो टॉप 500 कंपनी है सबका डेटा इसमें अपडेट हो रहा है। ये कल तक का अपडेट हो रखा है, 8/6 तक का। आज भी अभी शाम को अपडेट हो जाएगा ये, जैसे ही मैं मतलब एपीआई की ग्लोबल डेटा फीड से कनेक्ट कर रखा है इसको। आप कंपनी बोलो कोई सी भी, सबका डेटा अपडेटेड है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, अभी जो एग्जाम्पल दिए सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, ये तो एक वे है कि आप कैसे डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हो। अब आप किसी भी सेंस में कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको, जहां पे भी एपीआई की अवेलेबल है, या जो भी क्लाइंट आपको डेटाबेस का एक्सेस देता है। तो ये सारी झंझट ही खत्म कि आप मुझे मेल करो, वो मेल करेगा, बार बार उसको बोलो सर मेल कर दिया क्या वगैरह, सब खत्म। तो इसी को अपन ऑटोमेट करना कहते हैं, कि अपना प्रोसेस जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसको एलिमिनेट करना और अपना खुद का प्रोसेस बनाना। So Power Query is a very beautiful thing that has been introduced, but many of us don't know how to like efficiently use it. So that will be a key area to study. So लास्ट टाइम कम एक लैम्बडा फंक्शन और ले लो ना। हाँ बिल्कुल, अभी एक्सेल 365 में एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई है, लैम्बडा फंक्शन, जो आपके नॉर्मल एक्सेल में अभी नहीं होगा। ये इनसाइडर में ही अवेलेबल हुआ है अभी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लैम्बडा फंक्शन है। अभी 2 तरीके से मैं इसको समझाऊंगा क्या है। देखो एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज पहले से प्री डिफाइंड है, एक्सेल ने बना के दिए हैं कि ऐसे ऐसे है, आप इनको पढ़ो और यूज करो। लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, आपको खुद का एक फॉर्मूला बनाने के लिए देता है। आप खुद अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हो। आपके जो सबसे ज्यादा यूज आता है ना चीज डेली वर्क में, ये भी ऑटोमेशन से रिलेटेड है, इसीलिए सर ने बोला है अभी। आपके जो भी सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज आता है, आप सिंपली वो फॉर्मूला खुद ही क्रिएट कर लो। आपको उसके बाद वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैल्यू सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या चीज होती है, मान लो अभी मेरे को जीएसटी रेट है इधर और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। तो मेरे को टोटल अमाउंट क्या होगा, बेसिकली वैसे करूंगा तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.18, तो मेरे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ वैसे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 + 18%, राइट, ये आया। अभी मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है, कैसे बनाया वो भी बताऊंगा। टोटल अमाउंट के नाम से मैंने फंक्शन बना रखा है। ये देखो, बाकी फंक्शन के आगे लिखाता है fx, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, ये मैंने खुद का बनाया है, तो यहाँ पे मेरा अलग वे में दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, अमाउंट और रेट। अभी मेरे को ये जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया था वो नहीं लिखना, अभी तो मुझे अमाउंट सेलेक्ट करना है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे किया और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे जीएसटी रेट डाला और एंटर। ये देखो सेम ही चीज आई है जो यहाँ पे आई थी, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला था और यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। तो ये खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ लिख रखा है। सिंटेक्स क्या होता है, आप जस्ट जो भी थोड़ा इसको सीखना चाहे थोड़ा ध्यान देके अभी देखना क्या है। बेसिकली मुझे क्या करना है, लैम्बडा लिखना है यहाँ पे,
लैम्डा में पैरामीटर्स हैं। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करा था, इसके अंदर दो चीजें चाहिए थी, मुझे एक अमाउंट चाहिए था और एक जीएसटी रेट चाहिए थी। तो मैं उनको डिफाइन करूंगा सबसे पहले, जैसे यहाँ पे एक्स वाई, और बाद में हमारा लॉजिक आएगा। यहाँ एक्स वाई मैं यहाँ पे ए भी ले लेता हूँ। ए हो गया हमारा पहला पैरामीटर और बी हो गया हमारा दूसरा पैरामीटर। और हमारा लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि ये इस दिस मतलब दिस का मतलब ए से हमारा था अमाउंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय बी क्या था हमारा, मतलब फॉर्मूला 1 प्लस बी, राइट। जैसे यहाँ D2 है तो D2 की जगह मैं डालूंगा यहाँ पे B, क्योंकि B हमारा हो गया सेकंड पैरामीटर। सिंपली ये मेरा नया फॉर्मूला बन चुका है, राइट। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। फॉर्मूला कैसे, ये हमारा लॉजिक बना है, इसको कॉपी करा, नेम मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू में गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा फॉर्मूला बना है, इसको मैं नाम अभी GST अंडरस्कोर कैल करके नाम दे देता हूँ। और जिसमें मैं यहाँ डिफाइन भी कर सकता हूँ ए क्या है, ए इज इक्वल टू है अमाउंट और बी इज इक्वल टू क्या है, जीएसटी रेट। राइट, और ये हमारा बन चुका है अभी जीएसटी कैल करके। अभी मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ जीएसटी कैल, जीएसटी कैल। यहाँ पे हमने पहले सेलेक्ट किया अमाउंट और कॉमा यहाँ पे किया जीएसटी रेट। ये देखो सेम चीजें आ रही हैं, तीनों सेम है, मतलब मैंने ये पहले से बना रखा था, ये आपको नॉर्मल कैलकुलेशन से करके दिखाया और ये ऐसे। अब ये तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल था लैम्डा का। अब आप ऐसे कितने ही फॉर्मूलाज बना सकते हो जो आपके डेली लाइफ में आपको फॉर्मूलाज टाइप करने पड़ते थे। लैम्डा में आपको एक बार फॉर्मूला टाइप करके डिफाइन करना है और उसके बाद आप कभी भी उसको कंज्यूम करो। सो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी में लैम्डा का दूसरा वर्जन होता है रिकर्सिव लैम्डा। अब इसमें क्या होता है, जैसे फजी लुकअप में अपन कर रहे थे कि कभी कभी डेटा गलत आ जाता है, बट वहां पे था वो डायनेमिक, फजी लुकअप था डायनेमिक। यहाँ पे आप सपोज करो आपके पास एक ही क्लाइंट है जो नॉर्मल आपको पता है भेजता ही ऐसे है, मतलब उसके जो उसने अकाउंटेंट रख रखे हैं वो कुछ भी लिख के भेज देते हैं, बट एक उन्हीं चीजों में ऊपर नीचे होता है दो चार, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी भेज देंगे, दो चार चीजें हैं। तो हमें एक बार मेहनत करनी है कि वो क्या करता है, कि उसकी गलतियां कहाँ आ रही है। जैसे ये समझो कि जयपुर को मेरे को चाहिए, जयपुर आना चाहिए, जेपी अगर उसने लिखा है तो यहाँ जयपुर आना चाहिए। तो मैंने एक बार डिफाइन करा कि ये वो गलतियां करता है और ये मेरे को उनका करेक्ट आउटपुट चाहिए, राइट। आप मतलब अभी रिलेट कर पा रहे हैं ना। मान लो वो कुछ नई गलती करेगा तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये उनके लिए यूजफुल है जो हमारे रिपीटेटिव क्लाइंट्स हैं और सेम टाइप की फाइल भेजते हैं। तो मैं उसमें क्या करूंगा, अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी एक रिप्लेस टेक्स्ट करके बना रखा है, इज इक्वल टू रिप्लेस टेक्स्ट करके आया है। तो इसमें क्या है, आई इज इक्वल टू टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर। टेक्स्ट टू बी रिप्लेस मेरा क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, कॉमा ये मेरा बिफोर है और ये हो गया मेरा आफ्टर। ये देखो आपका डेटा कैसा भी कितना ही गलत क्यों ना हो, चाहे उसमें केस सेंसिटिविटी से रिलेटेड इशू हो या फिर कुछ भी हो, आपका डेटा एकदम क्लीन होके आ गया है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखा है। ये आप नॉर्मली आप मतलब मैं इतने टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लगा कि ये कैसे कर सकता था मैं। इफ एल्स भी लगाते तो इतना बड़ा इफ एल्स लगता है वो, उसको बनाते बनाते मतलब वो भी फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। अभी नेक्स्ट उसमें कुछ भी आता है जयपुर का, मान लो मैं यहाँ पे JAI छोड़ दो, PURE लिख दिया मैंने और यहाँ पे जयपुर करा पूरा, और यहाँ पे मैंने इसको JAPUR कर दिया। मैं वापस से अगर यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट करूंगा इज इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये है, कॉमा न्यू टेक्स्ट में F4
ओके सॉरी, ये रिप्लेस वाला फॉर्मूला चल गया था। रिप्लेस टेक्स्ट जयपुर कॉमा ये देखो जयपुर डाला था मैंने, अभी आपके सामने ऐड किया था और यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म भी ऐड करी थी, ये होके आ गया। सो ये लैम्डा है बेसिकली। अगर शॉर्ट में बताऊं तो लैम्डा क्या है, आपके जो भी चीजें आप रेगुलर बेसिस पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप उसको खुद का फॉर्मूला बना सकते हो, आपको बार बार वो फॉर्मूलाज टाइप नहीं करने, राइट। इसके ऊपर ये नए एक्सेल में है तो शायद आपको अभी ना मिले, बट आई वुड रियली एडवाइज कि जो भी एक्सेल यूज करते हैं वो अपने आप को ऑटोमेटिकली अपग्रेड करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं भी अगर एक्सेल यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से तो मुझे एक्सेल आ गया है। बहुत सारी चीजें होती हैं, नॉर्मली मेरे को बहुत सारा आता है, बट नए नए फीचर्स बहुत ज्यादा आते हैं एक्सेल में। हर अपडेट के साथ पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाता है, तो आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। जैसा स्टार्टिंग में सर ने बोला था, ये अडॉप्ट करना ये हमारे नेचर में होना चाहिए अगर हमें सिचुएशन के साथ रहना है तो। सो सर 6:55 टाइम ऑलरेडी आई गेस हो हाँ चुका है। वो शिवानी, तो ये सारी चीजें थी मेरी साइड से, एक्स लुकअप फजिल, ये जो भी आज फीडबैक है। वाला भी शेयर कर देना। हाँ ये शीट मैं शेयर कर दूंगा, इसके मतलब आपको एग्जांपल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सब कर लेना। बट बिलीव मी, अगर आप ये सारा काम खुद कर लेते हो पूरा, मतलब ये सारी चीजें आज जो भी बताया वो आप अच्छे से पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट मेक इट ए हैबिट, ये नहीं बस सीखने का, आप उसको रेगुलर उसमें यूज में लाओगे तभी आपका उसकी इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी। आप मतलब लोकेश सर और ये तो आपके सामने एग्जांपल ये खुद सीए हैं, इनके साथ मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये बता पाएंगे कितना यूजफुल रहता है। सो या थैंक यू ऑल। Wonderful, Yadav साहब, fantastic session. In fact, friends, अभी 2016 में इंस्टीट्यूट में हमने डिजिटल अकाउंटिंग एश्योरेंस बोर्ड बनाया है। बोर्ड जनरली उसका बनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अपने प्रोफेशन में। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसके बाद तीसरा जो बोर्ड बनाया दैट इज डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। और बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड में जहाँ पे कि इस तरह का ये बोर्ड बनाया है। उसमें हम लोग भी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम हमारी ये है कि बहुत कम मेंबर्स उसमें कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, उसमें जो नए नए कोर्सेज हो रहे हैं उसको अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। बट आई थिंक कि आज के प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फील्ड्स। और सर हमने कोशिश भी ये की है जो सारे फीचर्स है ना सर, डेली प्रैक्टिस वाले फीचर्स उठाए। और सर क्या होगा जब इन मतलब सारे अलग अलग है, लेकिन जब ये सारे पिरो के एक साथ आएंगे ना, मींस तो हम लोग काफी अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं। सर प्रैक्टिस की बात है। सर ठीक बात एक चीज बस मेरे को बोलनी है कि सर गूगल फॉर्म सबसे शेयर किया है, अगर आपका सेशन का कोई भी फीडबैक हो तो आप प्लीज इस गूगल फॉर्म पे आपके चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज इन सब शेयर कीजिए अपने और जो कोई डाउट भी हो तो आप सिंपली उसी के जो कमेंट लास्ट में सेक्शन है उसमें लिख दीजिएगा। अगर किसी का कुछ ऐसा डाउट होगा तो हम कनेक्ट करेंगे उससे। ठीक है। हाँ शिवानी, ओवर टू यू। अनम्यूट करो शिवानी, अनम्यूट। Thank you so much, sir. Thank you, Nilesh Yadav, sir, and CA Udit Bhargav, sir, and Lokesh, sir, for such an interactive session. I feel like most of the session has been thinly, very veiled and not very informative. But the session has been very interactive, and I am definitely going to use all these tools in my day-to-day basis. At least I'll try to use most of the tools. So a very thank you to all the participants, and a special thank you to all the branches and Lokesh sir and Prakash Sharma sir for joining the session with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you all.